Hi and welcome. This is episode 14 of Understanding the Indian Music Industry. Thanks for joining on time. Uh, as you know, this is a very special show today. We're talking about marketing of music videos. I have two very interesting gentlemen today with me, out of which I'm going to introduce one of the panelists really very soon. First of all, I'd like to thank everyone who's been a part of the journey with me. Um if you can hear me, just type in the chat box yes. Works perfect. Thank you so much, Palak and Krutartha. I'm going to start the episode really very soon. We are still waiting for one of my panelists, but I would like to introduce myself first. My name is Jesse J, and I help music enthusiasts understand the Indian music industry from the eyes of the insiders. I've been in the media and entertainment space for the last 15 to 20 years. I started India's first independent music radio with Radio City called as Freedom Radio. Um, guys, can you? I'm getting my. Shravan, can you mute yourself? Can you mute us? Okay. Um, Shravan, I will also request you to just wear headphones so that I don't hear myself back. Uh, So yes, understanding the Indian music industry, the sole purpose of this show was to educate the music enthusiasts, those people who are coming in the industry. There is not a clear picture what they should do, who should they approach in terms of various aspects. I'm on my 14th show. You could have seen most of my videos on the YouTube channel called This is Jesse J. Um, Again, I would like to thank everybody who's been with me on this journey. Without wasting any much time, I'm going to straight away introduce my first panelist. And trust me, I'm very excited to call him on my show, Mr. Parul Setia, who is the founder of Pravik Digital. Pravik, Parul, welcome to the show. Hi, sir. Hi, hi, hi. Thank you Yeah, so much. thank you so much, Jesse, sir. First of all, Most welcome, Parul. You have done some really great work in the North industry, what we were talking about. Um, yeah, I have specifically invited you on my show because मुझे नॉर्थ की साइड का कैसे बिजनेस कैसे होता है, वहां पे लोगों की म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों की थिंकिंग कैसी है, वहां पे लोग कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। एक एस्पेक्ट जो हमने बात किया जिसमें हमने बोला कि नॉर्थ की इंडस्ट्री बहुत ही दिल से काम करती है, तो वो एक yeah, सबसे right. बड़ा एस्पेक्ट है। उसके बारे में भी हम पॉइंट्स टच करेंगे। तो वेलकम टू द शो पारुल एंड योर ओपनिंग रिमार्क्स। Thank you so much, sir. So, एक सेकंड। या सो सर, अब अभी जो हम नॉर्थ रीजन में अभी वर्क कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, तो जितना भी हम जैसे मैं बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कैसे वर्क करते हैं नॉर्थ रीजन ऑडियंस, तो राइट। नॉर्थ रीजन ऑडियंस का थोड़ा मेरे लिए इजी होता है। जो अगर कोई भी नॉर्थ रीजन ऑडियंस में वर्क कर रहा है, तो अगर उनको पंजाबी लैंग्वेज अगर आता है, तो वो थोड़ा जल्दी इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। आपको वो आती भी है? बहुत या मैं तो हूँ पंजाब से बेसिक। ओके, ओके, मेरी प्रॉपर स्टडी एंड होम टाउन सारा पंजाब में ही है अपना। ओके। तो वो एक इजी पॉइंट, एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए, इसलिए तो मैं जल्दी थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ उस साइड से। एंड सेकंड थिंग कि उनको आप मिलके अप्रोच करें, एंड जितना भी अगर वो वर्क करते हैं, उनको वर्क करने के लिए जैसे अभी कोई सॉन्ग्स वगैरह, जैसे अभी कोई वो रिलीज कर रहे हैं, जब उनकी कोई ब्रांड का या प्रमोशन का कोई वर्क देखता हूँ कि ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए, तो फर्स्ट उनका होता है कि वो कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर उसमें वो ब्रांड फिट नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल उनका होता है कि नहीं यार, ये नहीं कर सकते। पहले हम लोग देखते हैं वीडियो, सॉन्ग, म्यूजिक, लिरिक्स वगैरह, तो उस हिसाब से हम ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन सा हम उसमें फिट कर सकते हैं। कंटेंट के साथ अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो बाद में मेन तो लास्ट में हमें ऑडियंस को ही दिखाना है वो चीज, और ऑडियंस को पसंद आएगा तभी वो ब्रांड्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, और सिंगर्स के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, डायरेक्टर के लिए तभी वो बेस्ट रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पारुल आपने शुरू कर दिया, मतलब शो शुरू करते ही आपने किक ऑफ कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने टच किया कि क्रिएटर्स कितने कितने सेंसिबल हैं
कि वो ब्रांड्स के साथ जब वो वीडियो में काम करना चाहते हैं किसी ब्रांड के साथ, तो वो सेंसिबल खुद डिसीजन लेते हैं। मैं उस टॉपिक को टच करूंगा पारुल। थैंक यू सो मच Yeah. अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। माय सेकंड गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही Sorry, इज sorry, guys. I'm late. I'm late. I'm so sorry. I was actually eating, bhai. I'm so sorry. no problem at all. Thank you so much, Shravan, for being on the show. And Thank you so much, Tag Dog Jesse, bhai. Media It is was doing Tag Dog Media is doing great work. You, uh, that's why I said my intention of saying that you need no introduction is because your work is talking, and that's the main reason I invited you on the show. I approached you because I have seen that Tag Dog Media. The push that you're giving to an artist in terms of his music video release, the strategy part that we are going to discuss today, I think that is something that really Tag Dog stands for. Your opening remarks on true. the show, Shravan. True. Yes, bhai. Thank you so much, Jesse, bhai. First of all, Arul bhai, for inviting Yeah, me. hi, Sandeep. I'm going to like my first time बात कर रहा हूँ अरे like नहीं, a proper webinar. तो थोड़ा सा हाँ, फंबल होने वाला है for sure. But yes, ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा कैजुअल रखें तो थोड़ा सी चीजें आज जैसी भाई का I've seen his show earlier. तो बहुत ज्यादा कैजुअल होती है चीजें तो थोड़ा सा कंफर्टेबली फील होगा शायद तो वो चीज भी होने वाली है एंड Good. यस so basically my name is Shravan Patil. People know me by name. मेरे जो लोग मुझे जानते हैं मेरा स्टेज नेम है ओके श्रवण एंड मैं ओनली डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट में हूँ एज वेल एज मैं डायरेक्टर भी हूँ जी म्यूजिक के साथ एंड टीसीएस के साथ मेरे एज अ डायरेक्टर बहुत सारे गाने आ चुके हैं तो यस जैसी भाई प्लीज Wow. मैं बेसिकली स्मॉल Wow. इंट्रोडक्शन वाह, ये मतलब आप लोग दोनों मिलके पूरा 360 कवर कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव साइड कवर हो रहा है श्रावण के साथ, एक डिजिटल मीडिया एस्पेक्ट फॉर द क्रिएटर्स कवर हो रहा है श्रवण के साथ, और पारुल के साथ जो ब्रांड इंटीग्रेशन हो रहा है और उनकी साइड का जो सोच है, यानी जो डिमांड साइड है उनका भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, मजा आएगा आज। तो यस भाई मैं स्ट्रेट अवे जंप करना चाहता हूँ। श्रवण, द क्वेश्चन इज टू यू। हाँ जैसे ये शो के शुरुआत में मैंने बोला, ये जो शो है इसको मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, क्योंकि मैं जो म्यूजिक एंथुसियास्ट है, जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट अपने गाने निकालना चाहते हैं, जो रिलीज करना चाहते हैं, वो कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द, जब उनका एक गाना रेडी हो गया, राइट, उन्होंने अपना एक सॉन्ग रेडी कर दिया, अब वो म्यूजिक वीडियो के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रोसेस क्या, एक एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप क्या सजेशन देंगे, ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एंड पारुल, यू कैन ऑल्सो जंप इन इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग। yeah, sure, sure. So basically, first of all, जब कोई भी गाना एज अ जो 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 बेसिकली हमारे कंपोजर्स होते हैं वो सबसे पहले गाना बनाते हैं उसके बाद उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वीडियो का ओके तो वीडियो का जो भी आजकल मार्केट में इतने सारे डायरेक्टर्स हैं नए नए डायरेक्टर्स हैं लाइक मैं भी तो नया ही हूँ मेरे को इतने साल नहीं हुए इंडस्ट्री में तो स्टार्टिंग में अभी लोग आजकल हर एक कोई अपनी टीम बनाना चाहता है जैसे भाई टीम लाइक टीम इन टर्म्स ऑफ जो टीम हमारे साथ चले लाइक थ्रू आउट द जर्नी अगर 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 आप इंडिविजुअल सिंगर की बात करते हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट जब कोई सिंगिंग का बैकग्राउंड नहीं है उसको स्टार्ट करनी है तो बहुत सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो खुद से वीडियो शूट करते हैं खुद से एडिट करते हैं खुद से अपलोड करते हैं ओके तो जर्नी ऐसी होती है कि आप किसी को पिच करते हो कि श्रवण जैसे मैं कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर हूँ मैं छोटा डायरेक्टर हूँ लाइक एग्जाम्पल तो आप मुझे अप्रोच करते हो कि श्रवण मेरा एक वीडियो के लिए बजट नहीं है कैन यू जस्ट डू इट इट इज लाइक वन डे का शूट जस्ट कम आई प्रोवाइड द कैमराज ऑन एवरीथिंग आपको बस आके शूट करना है तो इट इज दैट सिंपल उसके बाद अगर आप प्रमोशन की भी बात करते हो तो अभी तो उसका तो बहुत बड़ा प्रमोशन का वो बेसिकली टॉपिक है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे तो एज अ इंडिविजुअल मेरे हिसाब से वो लाइन होनी चाहिए कि अगर आजकल आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को डीएम भी करते हो तो आपका एक दिन के अंदर रिप्लाई आता ही आता है छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर का छोटे डायरेक्टर Right. का छोटे मतलब सॉरी गाइस छोटे मतलब ऐसे मत पकड़ना ये भी छोटा ही हो इट्स जस्ट लाइक कि जिसने Basically, बहुत जिन्होंने अभी start नया नया किया है। इंडस्ट्री में यस जो नया नया इंडस्ट्री में तो आपके पास एडिटर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बहुत सारे एडिटर्स ऐसे हैं जो अपना शोरील बनाने के लिए काम करते हैं मार्केट में इंस्टाग्राम पे उनको बस अपना शोरील बनाना है कि वो शोरील दिखा के वो लोग काम लेके आ सकते हैं तो ये दो चीजें आपकी कवर होगी थर्ड आपका इक्विपमेंट कॉस्ट होता है एंड इक्विपमेंट कॉस्ट आजकल मार्केट में अगर आप सबसे एकदम चीपेस्ट कैमरा भी बाय करने जाओगे which can give you the 4K quality at the same time. It will cost you around 2000 bucks. So it is not that big deal कि हम लोग 2000 स्पेंड नहीं कर सकते 2000 रुपए हर एक कोई बंदा स्पेंड कर सकता है आज के टाइम और किसी फ्रेंड को आप बोल दो कि भाई तू बस कैमरा पकड़
हैव सीन मेनी म्यूजिक वीडियोस जैसी अनफारुल भाई कि जो घर पे शूट हुआ है, एक छोटे से रूम में शूट हुआ है, और आजकल वही वीडियो के व्यूज 20 मिलियन 30 मिलियन है। तो आपके कैमरा इक्विपमेंट, आपकी डायरेक्टर टीम, आपकी डीओपी टीम, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कंटेंट पे बिलीव होना चाहिए। कंटेंट इज द किंग एंड कंटेंट विल बी द किंग फॉरएवर। सो ये बात हुई आपने जो बताई, ये तो आपने प्री शूट की बात हुई। कंटेंट क्या कंटेंट बन गया? हाँ, अब क्या? अब आती है बारी रिलीज की। हाँ, तो वो कैसे करेगा आदमी? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे भाई यहाँ पे दो पहलू है। पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी चीज, हम लोग एक स्टार्टअप वाले बंदे की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये शो ये शो का जब मैं सेकंड पार्ट करूंगा, तब मैं या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, एजेंट जैक में करूंगा, या तो ताकि क्या दारू वारू सब साथ में रहे, 2 पैग 3 पैग हो रहे हैं तो वो हम लेके बैठने वाले नेक्स्ट। हाँ, वो नेक्स्ट जैसी भाई परुल भाई पीते नहीं है तो उनको एप्पल जूस रखना पड़ेगा, वो रख देंगे, टेंशन नहीं है, पैग जरूर रखेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कूल। हाँ, सॉरी श्रवण, कंटिन्यू। दो अलग अलग पहलू होते हैं। हाँ, अच्छा, तो so I think we've lost Shravan. Yeah. We've lost Shravan. So Parul, why don't you take it? वीडियो बन गया, अब क्या? हाँ, सो वीडियो बनने के बाद वही डिपेंड करता है कि आप कौन सा, आपके सामने कैसा आर्टिस्ट है, कितना उनके पास सेविंग या कितना वो स्पेंड कर सकते हैं उस चीज पे। हम उनका एक बार उनसे पूछ लेते हैं आपका बजट वगैरह प्रमोशन के लिए एंड कितना आप स्पेंड कर सकते हो, तो उस बेसिस पे हम उनको प्रॉपर एक प्लान बना के देते हैं कि कैसे सॉन्ग बन गया, सॉन्ग को हिट करना भी है, सॉन्ग को वायरल भी करना है कि लोग उसको सुने, लिरिक्स उसके इतना चले कि मतलब वो थोड़ा लगे एक सिंगर के लिए। नहीं तो सॉन्ग बनाने का फायदा नहीं है फिर तो, अगर वो लास्ट वही 10K 20K तक 100K तक ही रह जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो फोकस रहता है वो हमारा रहता है ऑर्गेनिक के लिए, कि ऑर्गेनिकली हम कैसे उसको वायरल कर सकते हैं। नहीं तो वो बाद में पेड प्रमोशन एंड ऑल एड्स वगैरह उसका तो हम फिर करते ही हैं साथ में। सॉरी गाइस, मेरा ऑटोमेटिकली मीटिंग एग्जिस्ट हो गई। कोई बात नहीं। वो कैसे होता है जैसे भाई, वो 2 बार हुआ मेरे से। क्या? मीटिंग डायरेक्टली एग्जिट हो गई थी बात करते करते। मे बी कोई इंटरनेट इशू। वेरी फास्ट डिस्कनेक्टेड टू दी। ओके या गो अहेड श्रवण, you were saying the two aspects. पारुल ने अभी बताया कि सबसे पहले फोकस होता है कि आर्टिस्ट से ऑर्गेनिकली कितना रीच हो सकती है, उसका बजट क्या है, और ऑर्गेनिक रीच। आप फिर से शुरू कर सकते हैं श्रवण के आप कैसे इसको हैंडल करते हो? यस, और एक न्यू आर्टिस्ट ने कैसे हैंडल करना चाहिए इसको? राइट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे न्यू आर्टिस्ट से। ओके, जैसे अनपरुल भाई, तो जैसे कोई नया आर्टिस्ट हमारे पास भी आता है, जैसे मेरे, अगर कंपनी की बात चलो अलग होगी, टैगलॉग मीडिया अलग होगी, वो तो एक कंपनी फॉर्म है। अगर मेरे पास कोई आर्टिस्ट आता है कि ब्रो ये मेरा वीडियो हो गया, मैंने इसमें 10,000 रुपए खर्चा किया, मेरा इतना ही बजट था ब्रो, मेरे से नहीं हो पाया, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि हम लोग रीच आउट कैसे करें। अब रीचिंग आउट टू द पीपल एंड गेटिंग द व्यूज, तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। रीच आउट मतलब करना, लोग रीच लेके आके उसके ऊपर है कि लोगों तक आईबॉल्स पहुंच गए उसके ऊपर। व्यूज का उनका पंगा नहीं होता कि भाई इतने व्यूज चाहिए। तो जो बेसिकली स्मॉल आर्टिस्ट होते हैं उनको उतना कुछ व्यूज का ग्रीस नहीं होता। अगर जितना मैं स्टडी किया लोगों को, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट के अंदर ही होता है वो चीज, तो बिग व्यूज और मिलियन में चाहिए बजट लाइक दैट। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई देख बजट नहीं तेरे पास ना, तो कंपनी को जहां तक तुझे पुश कर सकते हैं हम लोग पुश कर। मतलब जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे भी 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, वहां पे स्वाइप अप डाल दिया, मेरे अकाउंट से स्वाइप अप डाल दिया, जो मेरे पार्टनर है गिरी जी उनके अकाउंट से स्वाइप अप डाल दिया, चलो एक किसी को हेल्प हो रही है, तो हमारी थोड़ी बहुत ऑडियंस वहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, बट वो स्वाइप अप भी वर्क नहीं करता, बिकॉज उसमें मेरा भी कुछ काम नहीं है ना, मेरा कुछ कहीं पे नाम नहीं दिख रहा, तो मेरी ऑडियंस जा ही नहीं पाती, ना उनकी जा पाती है ना मेरी कंपनी की जा पाती है, बिकॉज मेरे कंपनी का नाम, ना मेरा नाम, ना मेरे पार्टनर का नाम कहीं पे नहीं, तो वो वहां पे वीडियो अटक गया। अब इसके बाद हम लोग चीज पता उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना स्पेंड करने के लिए, तो आपके पास सबसे बड़ी पावर है वो यूट्यूब। आप अच्छे से टाइटल लिखो, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, आप प्रॉपर्ली कीवर्ड रिसर्च करो, है ना भाई? राइट जरूर भाई, एसईओ सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप ओनली न्यू हिंदी सॉन्ग्स भी सर्च करोगे ना, न्यू हिंदी सॉन्ग्स के पर मंथ अराउंड 10 मिलियन सर्चेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ना? यस भाई, जैसे परुल भाई
तो ओनली वही कीवर्ड के न्यू पंजाबी सॉन्ग्स या न्यू हिंदी सॉन्ग्स इसके 10 मिलियन सर्चेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मे बी इंडिया के थोड़े कम हो सकते हैं। तो लोग इतने ज्यादा लेवल पे सर्च कर रहे हैं। अभी आपको टॉप पे रैंक तो करना नहीं है, 10 मिलियन तो व्यूज हमें चाहिए नहीं, बिकॉज आप स्टार्टिंग में छोटे स्केल से स्टार्ट कर रहे हो। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा एसईओ टाइटल बना के, कुछ ऐसा सा डिस्क्रिप्शन बना के, कीवर्ड डाल के उसको एक सर्टेन लेवल पे हम लोग रीच करा देते हैं। या फिर नहीं, वो भी नहीं कर पाते तो हम लोग कर देते हैं कि भाई चल ठीक है, तेरे लिए हम लोग काम कर देंगे, तो आज एक दिन ऑफिस में बैठ के तेरे सामने कर देंगे, तू भी सीख जाएगा। तो एक एसईओ से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। मतलब आप महीने के नाना बोल के 10,000 व्यूज इजीली लेके आ सकते हो, है ना परुल भाई? जो हम लोगों ने हाँ पहले भाई, किया अगर भी है स्टार्टिंग आपका स्टेज में। किया भी है भाई, हाँ अगर एसईओ के कोई टैग्स होते हैं जैसे न्यू पंजाबी सॉन्ग, और उसके रिलेटेड जो अगर सॉन्ग, जैसे सॉन्ग रोमांटिक है तो रोमांटिक सॉन्ग 2020, इस टाइप से उसमें टैग्स वगैरह हम ऐड कर देते हैं, प्लस थंबनेल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, जिससे थोड़ा एल्गोरिथम उसी हिसाब से होता है यूट्यूब का। और अगर उसमें से 2 या 3 कीवर्ड भी कोई ऐसे रैंक करते हैं, जो अगर न्यू पंजाबी रैंक सॉन्ग या कर न्यू गया। हिंदी सॉन्ग में वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे भी अगर सॉन्ग आ रहा है, तो वहीं से वो काफी व्यूज ऑर्गेनिकली बहुत बहुत जनरेट कर सकते हैं इजिली। यस। और इसमें सेकंड चीज, न्यू यस आर्टिस्ट भाई, के लिए सबसे बेस्ट यही है, अगर उनको बजट उनका ज्यादा नहीं होता, ऑफकोर्स नहीं ज्यादा होता, कोई बनाता है वीडियो कम बजट में, बट उनके हेल्प के लिए हम इतना कर सकते हैं कि हम उनको एक बार गाइड तो कर ही सकते हैं, साथ में हम उनको बताते हैं कि आप इस टाइप से इस सॉन्ग को ऑर्गेनिकली लेके जा सकते हो। और पेड से ज्यादा बेस्ट है फिर ऑर्गेनिकली अगर कोई सॉन्ग जाता है तो। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। और इसके बाद पता है क्या होता है, अगर आपका एक बार वीडियो रैंक होना चालू होता है ना गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे सर्च इंजन में, उसके बाद यूट्यूब आपको रिकॉग्नाइज करता है कि लाइक ही इज द क्रिएटर, कुछ कुछ कर रहा है वो। तो उनकी भी बेसिकली ऑर्गेनिज्म तो बनी हुई है, बट उनके पास लोग भी है जो आर्टिस्ट को पिक करता है। जहां तक मेरा नॉलेज पहुंचा हुआ अब तक, ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म कैच नहीं करता टोटल ओवरऑल, तो उसके पीछे मेहनत भी देखती है। वो लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या जगह पे शूट हुई है चीजें, कितने बजट में शूट हुई है। अभी आजकल यूट्यूब का नया ऑप्शन निकला हुआ है, क्रिएटर ऑन द राइज, अभी किसी ने देखा होगा, क्रिएटर ऑन द राइज, है ना? तो ये बेसिकली ऐसा है कि ये पर वीक ना किसी को उठाते हैं लोग, जो नया क्रिएटर है। और सब क्रिएटर्स छोटे छोटे भाई, मतलब जो कोई घर से काम कर रहा है, कोई लाइक जीरो बजट, वो किसी बड़े क्रिएटर को नहीं उठा रहे वो लोग, तो इसको ट्रेंडिंग में लाके रख देते हैं 5 नंबर के नीचे। तो वो पूरा उसको सेक्शन मिल जाता है कि लाइक क्रिएटर ऑन द राइज, तो राइज पे फिलहाल। तो बेसिकली कांस्टेंट काम करो। एक नया जो आर्टिस्ट है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि भाई एक गाना 1 महीने में निकालो, फॉर श्योर निकालो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके 10 गाने भी 1 साल में आते हैं तो सर्च इंजन पे आपका एक ना एक गाना चल जाएगा। उसके बाद अगर गाना तो आपका 100%, यस यस यस, अगर सॉरी मेरा पॉइंट थोड़ा छूट गया था पीछे। जैसे आप एसईओ में रैंक करना चालू होते हो, थोड़ा बहुत आपको सोशल रीच मिल जाता है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो चलो ट्विटर से रीच आती नहीं बिल्कुल भी, तो डेड ही है प्लेटफॉर्म। मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ लिंक्स यूज, वहां से लिंक यूज पास नहीं होता, बहुत कम लोग क्लिक करते हैं लिंक्स के ऊपर। तो सोशल रीच भी आपको जैसे मिल गई, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली न्यूज सॉरी सजेशन फीड में आ सकते हो। सजेशन जैसे जैसे एक वीडियो के एग्जांपल 1 लाख व्यूज है, एक कोई रैप वीडियो छोटा सा, उसके 1 लाख व्यूज है, उसके बाद उसके नीचे आपका वीडियो सोना चला जाता है। तो बेसिकली वो आपका ऑलगोरिथम ने पकड़ लिया कि चलो ठीक है, ये भी कंटेंट सिमिलर है। इस सेकंड स्टेप होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है कि सर्टेन टाइम बाद आपका वीडियो होम पेज पे होता है शो। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बोल भाई फीड, फीड व्यूज, होम व्यूज ना, फीड व्यूज, ऐसे कुछ तो टेक्निकल वर्ड है। होम पेज यस। एक बार आपका वीडियो होम पेज पे रैंक हो गया भाई, बूम, you're on the rise. It's a बहुत सिंपल स्टेप है, बट रेदर टू गो विद दिस थिंग ऑर्गेनिक, क्या stick to organic। तो मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों को कि जब तुम लोग बोल रहे हो कि एक आर्टिस्ट खुद ब खुद कर सकता है ये सब चीज, जो इनिशियल कुछ है, इनिशियल राइट, अभी वो बड़ा नहीं बना है, वो इनिशियल आया है, तो तुम लोग बोल रहे हो ये वो खुद ब खुद कर सकता है, तो इसके लिए अमूमन कितना टाइम देना पड़ेगा उसे? वीडियो बना लिया उसने, अब ये सब करने के लिए उसको ऑन अ डेली बेसिस कितना वक्त गुजारना पड़ेगा यूट्यूब पे, ये करने के लिए, एसईओ करने के लिए, ये सब खुद ही करने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा? भाई एज पर माय नॉलेज एसईओ आप सीख जाओगे ऑलमोस्ट इन अ मंथ, करूँ भाई? बहुत बहुत एक मैं तो बहुत बोल दिया मैंने, सॉरी, मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है, एक स्टार्टिंग बनने के लिए, नॉट गूगल पर, आई एम सो सॉरी, यूट्यूब की बात कर रहा हूं। एसईओ के लिए कोई किसी को आप सजेस्ट करते हो इसको फॉलो करो या इसको देखो यूट्यूब पे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कोई है? थाउजेंड ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ सबका देखो तरीका, देखो चीज सेम है, सबका करने का तरीका अलग है। अच्छा, चीज वही है, ऑर्गेनिज्म वही है, सबका करने का, पुरुल भाई का तरीका अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग होगा, बट वो चीज एक ही है। सब लोग मिलके एक ही जगह पे आने वाला है, बट कोई वहां से स्टार्ट करता है, कोई वहां से स्टार्ट करता है, ये डिफरेंस है। पुरुल भाई कुछ बोल रहे थे?
अगर टाइम पे अगर मैं हम बात करें कितना टाइम को लगता है, टाइम ऐसा है कि एक दो वीडियो मैं तो नहीं सोच सकता कि फर्स्ट वीडियो में ही वो टैग्स लगाएगा और वर्क, अगर वो काफी अगर किस्मत वाला है, लकी है, तो शायद वो कर जाए। बट वही है कि अगर वो उसके 3-4 वीडियो और हर मंथ वीडियो जा रहे हैं, प्लस कोई एक वीडियो अगर उसका रैंक कर जाएगा तो वो उस गेम को समझ जाएगा जल्दी। एक वीडियो भी उसका अगर अच्छे से रैंक कर रहा है, व्यूज उस पर ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, सही टाइटल है, सही थंबनेल है, तो वो उस चीज को अपने आप समझ जाएगा कि इस सॉन्ग पे व्यूज आए और उस सॉन्ग पे क्यों नहीं आए। और वहां पे आजकल तो इतने एक्सटेंशन और टूल्स वगैरह आ गए हैं कि आपको इजीली पता लग जाता है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना चाहिए इस सॉन्ग में। ये सारे आ गए हैं आजकल तो, गूगल एक्सटेंशन और टूल्स से काफी हेल्प हो जाती है। पहले तो आपको मैंने भी देखने पड़ते थे कौन सा यूज कर सकते हो। हाँ, एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस था पहले, बहुत लंबा प्रोसेस था। तो- You have to तो- link build and all, ना लिंक बिल्डिंग की टूल्स में। तो ये एक बहुत अच्छा श्रवण और पारुल, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस बताया आप लोगों ने कि कैसे यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझें, गूगल को समझें, एसईओ को समझें और वर्क करना शुरू करें। ये एक बहुत अच्छा, थैंक्स आप लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसके सिवा और कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना वीडियो प्रमोट कर सकते हो? फुल वीडियो, मैं फुल वीडियो की बात कर रहा हूँ। क्या Full video यूट्यूब छोड़ के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? और यूट्यूब छोड़ के कहाँ पे वीडियो प्रमोट कर सकते हैं? हाँ, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यू- है इंडिया में? यस 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 यस। एक चीज मैंने बीच में एक्सपेरिमेंट की थी। हम्म, मेरी पॉलिटिकल कैंपेन थी, ओके, ओके। पॉलिटिकल कैंपेन, तो उससे मैंने हाँ गाना किया था, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, मतलब किसी हाँ का भी एक्सवाइजेड। हम्म, हाँ पॉलिटिकल कैंपेन की मैंने 2019 में बॉम्बे की थे, तो मराठी था गाना, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी टीम को बोला टीम को कि भाई एक काम करो, तुम लोग जितने भी मराठी वाले ग्रुप है, जितने महाराष्ट्र वाले ग्रुप है, सबको ज्वाइन कर लो। कहाँ पे? पूरी टीम ने ज्वाइन कर लिया। फेसबुक फेसबुक पे, ग्रुप। फेसबुक ग्रुप, हाँ लाइक द बिगेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अभी थोड़ी सी ये ब्लैक हैट हो गया, मतलब है थोड़ा अलग चीज में हाँ जाएंगे हम लोग, हाँ। पर बहुत यूजफुल चीज है क्या हो और गया? इलीगल नहीं, लीगल क्या वे में। क्या क्या हो गया? ब्लैक हैट, ब्लैक कैट। ब्लैक हैट इज बेसिकली ब्लैक हैट। इलीगल, व्हाइट हैट इज लीगल। टर्म्स है ब्लैक थोड़े से। हैट बोलते हैं इसको। जी जी हैक जी। हैक हैक। हैट इज ब्लैक हैट, हैट एंड हैट, कैट्स या ब्लैक ब्लैक हैट इज व्हाइट हैट। हैट। नया वर्ड सीखा आज। ओके। ये भाई बेसिकली हैकर्स यूज करते हैं अभी, अच्छा हाँ ठीक है। ढूंढने के हाँ हैकर्स। हाँ। ओके, तो उनको क्या बोला कि 2 दिन का टाइम लो तुम लोग, जितने भी मराठी के ग्रुप है सबको ज्वाइन कर दो, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ये था कि हमें ऑर्गेनिक गाने को पुश करना है कैसे भी, हमारे पास पैसे बहुत है, बट वो बेसिकली उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं ऐड लगाने से पहले। पॉलिटिकल कैंपेन अगर आप जब करते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हाँ बाइनरी क्या होता है, समथिंग, थोड़ा वियर्ड नाम है उसका। हम्म तो उसके बाद हमारे ग्रुप ज्वाइन हो गए कम से कम 100, हम्म 3-4 आईडीज हम लोगों ने 100 ग्रुप ज्वाइन कर ली सर्टेन टाइम, सर्टेन पीरियड में। हम्म वो कुछ कुछ लड़कियों के अकाउंट से थे, कुछ कुछ लड़कों के अकाउंट से थे, और बड़े आईडीज थे, पुराने वाले आईडीज थे हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, पर आपको पता है ऑटो पोस्टर आता है, ऑटो फोटो पोस्टर आता है, बूस्टर। ऑटो पोस्टर जो हम लोग यूज कर रहे थे। और ऑटो पोस्टर तो एक पहले यहाँ ग्रुप, टूल्स वगैरह होते थे। हाँ 2019 में हाँ, पता नहीं कुछ तो एक निंजा निंजा ऐसा कुछ सिंगल था, क्लिक उसका नाम पे है, ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स में पोस्ट हो जाता था। कुछ हो जाता। तो हमारे पास 3 आईडीज पड़े हैं, 3 आईडी ने सेम ग्रुप ज्वाइन किए फ्री ऑफ कॉस्ट, बस 2 दिन की मेहनत लगी उनको ज्वाइन करने के लिए, ढूंढने के लिए। तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मिलियन का ऑडियंस था। आप समझ रहे हो, 10 मिलियन का ऑडियंस था फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक ग्रुप से। तो वो वीडियो इतना नहीं पहुंचा, बट एटलीस्ट 10,000 व्यूज तो आए होंगे उसमें फॉर श्योर। हम लोगों ने वहाँ पे लिंक ट्रैकिंग नहीं लगा था, बिकॉज ओपन था वो लिंक वहाँ से। तो वो स्पैम हो जाता है बेसिकली। वो सेम वीडियो है क्या? वो सेम वीडियो है, मतलब एम्बेड सेम ही है? जी 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 जी। बट वो रिलेवेंट था ना, आपका रिलेवेंट पीपल थे, रिलेवेंट नीश था, रिलेवेंट म्यूजिक थी, रिलेवेंट एमएलए था, महाराष्ट्र था ऊपर से, तो लोग कनेक्ट कर पाए। मतलब इसका मतलब बोल रहे हो कि YouTube is also, Facebook is also a platform where the video can be posted. प्लेटफॉर्म है बिगेस्ट, अगर आपको प्रॉपर यूटिलाइज करते हो ना उसको, तो इट कैन बी द की। अब तो फेसबुक का ये भी हो गया ना कि यूट्यूब के, अब पहले क्या था, पहले यूट्यूब पे लोग इसलिए ज्यादा होता था कि इनकम भी देखनी होती थी, मोनेटाइजेशन देखना था। अब तो फेसबुक पे ही मोनेटाइजेशन इनेबल आपके अवेलेबल आपके लिए, आप इनेबल कर सकते हो। प्रोवाइड करते हैं, मैंने सुना वो लोग अच्छा रेट देते हैं। और यूट्यूब से ज्यादा बेस्ट है फेसबुक पे रेट्स आजकल, और बहुत मेरे फ्रेंड्स सर्कल में काफी लोग वर्क कर रहे हैं। तो आप फेसबुक मोनेटाइजेशन, मुझे तो पता ही नहीं था। फेसबुक मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन, एड ब्रेक, बहुत बड़ी चीज है। तो क्रिएटर्स को पैसे मिल रहे हैं? या वो क्रिएटर्स को पैसे मिल रहे हैं, उनके वीडियो 3 मिनट का वीडियो शायद पहले था कि 3 मिनट वीडियो
होना जरूरी है, 10,000 लाइक्स होना जरूरी है पेज पे। एंड जब वीडियो अपलोड होता है तो मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए गाइडलाइन थी वो उनकी। एंड उसके बाद अभी लोग काफी उस पर पोस्ट कर रहे हैं, जो क्रिएटर्स, मेरे ख्याल से क्रिएटर्स यूट्यूब से फेसबुक पे होने लगे हैं, आप क्योंकि किसी यूट्यूब क्रिएटर को पे आप किसी क्रिएटर को जानते हो जिसने जिसने इसमें पैसा बनाया है? फेसबुक, मेरे फ्रेंड सर्कल पे बहुत लोग पैसा बना रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो क्या है, फिल्टर कॉपी भी आपको पता है, फिल्टर कॉपी, हाँ, फिल्टर कॉपी फिल्टर पता है। कॉपी हो फिल्टर गया, कॉपी, हाँ, इनके पूरे के पूरे सीरीज वहां पे रिलीज कर रहे हो लोग, और 3-3 हजार मिलियन व्यूज है उसके। मतलब क्या फेसबुक एक्सक्लूसिव? फेसबुक एक्सक्लूसिव नहीं, बट एक्सक्लूसिव नहीं, हाँ पूरे सीरीज प्रॉपर्ली प्रमोट कर रहे हो लोग इन्फ्लुएंसर्स के हाँ, साथ क्योंकि क्योंकि फेसबुक पर। क्योंकि क्योंकि मैंने आजकल देखा है, श्रवण और पारुल, मैंने क्या देखा है मतलब आजकल मतलब मेरे पास स्मार्ट टीवी है, तो मैंने क्या किया, मेरे को उसने ये बोला, मेरे फोन पे आया मैसेज कि आप फेसबुक वॉच डाउनलोड करो, फेसबुक फेसबुक वॉच, वॉच। राइट। तो मैंने फेसबुक टीवी, वॉच है। हाँ, तो मैंने टीवी पे डाउनलोड कर दिया। अब मैं जब भी टीवी चालू करता हूँ तो वो मेरे को वीडियो सजेस्ट भी करता है कि वीडियो आप सजेस्ट हाँ, करता हूँ। आप ये देखो, आप इसको फॉलो करते हो, आप ये देख लो। तो आप लोग उसी चीज की बात कर रहे हो ना, फेसबुक या वॉच की बात कर रहे उसी उसी चीज फेसबुक वॉच की, हाँ। हो? हाँ, ओके। अभी फेसबुक यूट्यूब से ज्यादा वैसे इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे आपको टैग्स वगैरह और ये सब पे थोड़ा आता है प्रॉब्लम कि कब वायरल होगा या कब वो क्या होता रैंक करेगा कीवर्ड। बट फेसबुक क्या है, फेसबुक अभी वीडियो को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। उन्होंने तो एक अलग से फेसबुक वॉच निकाल दिया, इसलिए कि अगर आप कोई यूजर है, अभी क्या करें, पंजाबी सॉन्ग में अगर आपको बताऊं तो लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे जो सॉन्ग होता है वो तो यूट्यूब पे अपलोड है ही। अब उस हर सॉन्ग पे आपको पता है कि एक प्रॉपर स्टोरी होती है सॉन्ग पे, जो वो कोई भी, अब वो मोटिवेशनल सॉन्ग है तो उस बेसिस पे वो सॉन्ग क्रिएट होता है, स्टोरी वैसी होती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको उस सॉन्ग को डाउनलोड करके उसके ऊपर एक हेडलाइन लगा देते हैं कुछ भी, और फिर उसको वो फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। तो फेसबुक पे पोस्ट होने के बाद क्या 4 मिनट 3 मिनट प्लस ही होता है सॉन्ग वो, और वहां से भी वो मोनेटाइजेशन उनका इनेबल होता है, और वहां से भी वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं वहां से भी। मतलब आप उसी आर्टिस्ट की बात करो जिसने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया, वो यहाँ पे फेसबुक हाँ, पे भी ऐसा अपलोड कर रहे करता हैं, है? ऐसे काफी सिंगर्स कर रहे हैं, ऐसे काफी क्रिएटर्स ऐसा कर रहे हैं, काफी सिंगर्स ऐसा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम भी शायद रोल आउट कर रहा है अपडेट मोनेटाइजेशन का, बिकॉज इंस्टाग्राम तो फेसबुक से आईजीटीवी कनेक्टेड है। वीडियो अभी रोल आउट होगा, हाँ। Yes, 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 roll out होगा। और जो आप आजकल जो लोग गाने यूज कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, पोस्ट में डाल रहे हैं जो भी गाने, तो वो पोस्ट वाले गाने भी मोनेटाइज होने वाले हैं। तो वो भी अगर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा हाँ, वो प्लेटफॉर्म तो बनने वाला है नहीं, Instagram। वो तो मोनेटाइज हो ही रहे हैं, वो मोनेटाइज हो रहे नहीं, हैं। वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है, बट वो अब वो वो शॉर्ट पे वो पैसे। वो रॉयल्टी के see, वो जो गाने हैं वो तो रॉयल्टी के हिसाब से मोनेटाइज हो ही रहे हैं। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उसको मोनेटाइजेशन मिल रहा है। मैं एक्चुअली वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑडियो तो मुझे पता है कि वो मोनेटाइज हो रहा है, बट वीडियो मुझे नहीं, मुझे अभी आप लोग बोल रहे हैं कि आईजीटीवी भी बहुत जल्दी मोनेटाइज होने लगेगा। आईजीटीवी बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, ओके, ब्रिलियंट। तो अभी तक जो भी है हमारे साथ इस शो पे जुड़े हुए, अगर आपको मजा आ रहा है तो जरा कमेंट में लिखिए मजा आ रहा है, क्योंकि यस, क्योंकि मजा आ रहा है कि नहीं। किसी ने हाउस पार्टी भी लिखा है, तो मतलब मजा आ रहा है आप लोगों को हमारी ये डिस्कशन से। और हाँ, अगर आपके क्वेश्चंस हैं, देखो लाइव में रहने का सबसे ज्यादा एडवांटेज ये होता है क्योंकि आप लोग सिलेक्टिव लोग हो जो लाइव में हो, तो इसका मतलब है आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे Q&A बटन है, उसे दबाइए और क्वेश्चन पूछिए। मैं खुद पारुल और श्रवण का दिमाग खा चुका हूँ, इतने सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, और ये लोग दोनों इतने स्वीट हैं कि मेरे को मेरे सारे जो मतलब जो सारे मेरे सवाल थे उन्होंने उनके जवाब दिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाने वाला हूं, तो अपने पेपर पेन निकाल लीजिए, ये मास्टर क्लास है, ठीक है। तो पहले मैं जाऊंगा श्रवण के पास। श्रवण, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हो। आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि म्यूजिक वीडियो की एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके आपके पास कोई आए तो उसकी एक स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी? लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। एंड मैं पारुल ये क्वेश्चन इसके बाद आपके पूछूंगा, और फिर मैं ब्रांड की तरफ से ये क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो अब एक क्रिएटर की तरफ से श्रवण ये क्वेश्चन है कि एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए म्यूजिक वीडियो रिलीज करने की? रिलीज करने की, तो जैसे भाई बेसिकली व्हाट वी डू इज, यहाँ पर हमारे पास ना ऑलरेडी सबके ना पीपीटी रेडी होते हैं। सबसे पहली बात, जैसे जैसे लेट्स एग्जांपल, भाई एक आर्टिस्ट है, ठीक है, ऑफिस में है, बैठे, बातचीत हुई कि भाई श्रवण भाई, मेरा इतना बजट है, मेरा 1 लाख का बजट है, मेरा 5 का बजट है, मेरा 20 का बजट है, मेरा 50 लाख का बजट है, मेरा इतना बजट है, हाँ, अब बताओ आप क्या कर सकते हैं।
हाँ तो हमारे पास बेसिकली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ना चीजें हाँ पड़ी हुई है। हाँ 1 लाख का मेरे पास पीपीटी आपको भेज भी दूंगा, जैसे भी आप भी थोड़ा गो थ्रू कर लो, भाई आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। बेसिकली 1 लाख रुपए का पीपीटी अलग होता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, बहुत जरूरी है, बस बिकॉज वो डायरेक्ट यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, 1 लाख का बजट होता है अपना, 5 का होता है, 10 का होता है, देन 20 का होता है। हाँ हमारे पास 4 पैकेज पड़े होते हैं। हम्म वो पैकेज के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है। हम्म अगर 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख को कैसे यूटिलाइज करते हैं हम्म वो हमारे ऊपर है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लेट्स एग्जांपल, अगर तेरा भाई लाख रुपए का बजट है, लेट्स डू वन थिंग, हम्म। तेरे वीडियो पे 1 लाख व्यूज डाल देंगे, अच्छे वाले ऑर्गेनिक, दैट इज जहाँ से आपको लाइक कमेंट और शेयर भी आते हैं, दो डिस्कवरी व्यूज, मतलब आपको तो पता है। मतलब 1 रुपए पर व्यू सीधा? नहीं 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 नहीं, था पर भी नहीं होता वो। नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख तो वो तो उसका निकल ही गया। आपने नहीं बोला नहीं 1 लाख। बता रहा हूँ, एक लाख का उसको उसने मुझे बजट दिया है, हाँ 1 लाख रुपए का उसने मुझे बजट दिया है। हाँ उसमें हम लोग उसको 1 लाख व्यूज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये तो ठीक ये है, हो गया। अब सुनो, हाँ, उसके बाद हम लोग कुछ उसको इंस्टाग्राम पे पेज देते हैं जहाँ पे हमारे स्वाइप अप लगते हैं, छोटे मोटे स्वाइप अप लग गए, चलो भाई शाउट आउट वगैरह। शाउट आउट डाल दिया उसका नाम, लेकिन उसको इंस्टाग्राम भी रीच चाहिए थोड़ी बहुत, उसको इंस्टाग्राम फॉलोवर आने चाहिए। तो हमारे पास एक शाउट आउट बेसिकली का क्या ऑडियंस मतलब? शाउट आउट का क्या मतलब है? शाउट आउट मतलब मतलब? स्वाइप अप, शाउट आउट, स्वाइप अप, या किसी पर्सनल उसके सॉन्ग को हम शाउट आउट दे रहे हैं कि उसको प्रमोट कर रहे हैं किसी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, स्वाइप अप के थ्रू। हाँ इफ आई एम हनी सिंह, इफ आई एम हनी सिंह, अगर 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 आपका बजट है 20 लाख रुपए का, हाँ। तो मैं किसी को पास रीच आउट करूंगा और भाई बोला भाई थोड़ा अपना गाना आ रहा है, उनको शाउट आउट देना, वो पे कर रहा है अपने को। बेसिकली ये भी होता है, जैसे अच्छा अच्छा, समझ गया। वरुण भाई, ऐसा ऐसा भाई का गाना आ रहा है, प्लीज स्वाइप अप करो, स्वाइप का भी पैसा लग गया उसका, उसको वीडियो भी आ गया। तो बेसिकली ये चीजें मदद पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली 2-3 चीजें ही होती है जो आपका 1 लाख का होता है, बट इसमें 2-3 चीजें हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, बिकॉज 1 लाख रुपया इज, आई टेल यू, इट्स पीनट्स व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई है ना भाई, एडवर्ड्स पे भी कुछ भी कर लो, वीडियो प्रमोट ही नहीं हो पाता, वो प्रॉपर ऑडियंस तक ही नहीं पहुंच पाता 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए हम लोग को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में निकल जाता है वो, इसका ऑडियंस कहाँ से आएगा। हम्म। अभी कुछ कुछ क्लाइंट में ऐसे हैं जो मेरा महीने का उनका 10 मिलियन का एडवर्ड फिक्स होता है। तो मेरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। जी। समझो समझो मेरे पास 20 लाख रुपए का बजट है, हम्म ठीक है? और तो तुम मुझे बताओ, मैं 4 गाने निकालना, मैं 20 लाख रुपए का बजट है, मैं साल में 8 गाने निकालने वाला हूँ। तो मैं 8 निकालने वाला, तो मैं एक गाने पे ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं, या मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर, मतलब ये कैसे कैसे समझते हो आप लोग? ये बेसिकली क्रिएटिव कॉल अगर आप हमारे ऊपर सौंपोगे तो बेटर हो जाएगा वो चीज का। बस इस तरह का, अगर कोई आर्टिस्ट आता है ना, हाँ तो हमने को सुनाता है 10 गाने कि पाजी हाँ। मेरे 10 गाने हैं, अच्छा हाँ हाँ मुझे 10 में से ये पसंद है, ये बहुत हिट होने वाला है, इसको हाँ। पहला करता है। बट जो हमारे पास टीम बैठी होती है वो बोलती है कि नहीं ब्रो, मजा नहीं आ रहा है, ये गाने मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी जो हमारे पास लोग हैं, जैसे अक्षय क्वालिटी जो हमारे पास अभी तो मार्केटिंग हेड है कंपनी। तो मतलब ANR का काम आप लोग करते हो? ओ हो, जी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके yes, ओके तो वो ओके। बेसिकली नहीं, जब कोई हमारे हम लोगों से रिटर्न की करता है ना एक्सपेक्टेशन, हम्म कि भाई मैं 20 लाख रुपए डाल रहा हूँ एक गाने पे, तो मुझे पता रिटर्न कहाँ से आएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अलग जाएंगे, ये अपना पहले टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं। जो टॉपिक हाँ था हमारा बजट का, हाँ ये 1 लाख का बजट होगा, उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, बेसिक प्रमोशन होता है, उसमें हमारी फीस भी होती है 20% इंक्लूडेड। तो बेसिकली आपका 80,000 ही वहाँ पे यूटिलाइज होता है। हाँ, ठीक है, समझ स्ट्रेट गया। फॉरवर्ड। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उस ज्यादा बजट नहीं होता, वैसे लोग छोटे मोटे वीडियोस के लिए वी कैन जस्ट आया वीडियो, ऑनेस्टली बताओ तो, अगर आपका अगर वो कंटेंट अच्छा है, यस, उसमें दूसरी चीज है, और ड्यूरेशन क्या होता है इसका, वो श्रवण? डिपेंड होता है आर्टिस्ट के ऊपर, नहीं आपको कितना ड्यूरेशन में। नहीं, आपने जो बोला कि अभी 1 लाख रुपया लेके आया, उसका प्रमोशन का कितना दिन का ड्यूरेशन होता है? वो मैं ड्यूरेशन बेसिकली हम लोग 3 दिन लेते हैं, 3 से 3 4 दिन दिन मैक्स, बिकॉज वो टाइम नहीं होता फिर वो, बिकॉज जो बेसिकली क्या होता है पता है, मैं जो लोग 1 लाख रुपए देते हैं ना, जो जो लोग स्मॉल बजट वाले होते हैं, वो आपको दिन में 50 कॉल करेंगे, एज एज अ क्रिएटर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको। और जो बंदा एक सेकंड, वो नहीं, वहां पे मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो हम लोग को मालूम है, सी, क्रिएटर इज अ क्रिएटर इज अ क्रिएटर इज अ राइट क्रिएटर, राइट राइट राइट? सो दैट थिंग्स वी नो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब, क्या ये जो चीज है जो इसने इन्वेस्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको इससे एडवांटेज यूट्यूब व्यूज का ही आता है, या यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट होता है उसके गाना, स्पॉटिफाई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पब्लिक वहां पे भी जाती है? मतलब ये कैसा ट्रिकल डाउन होता है, नहीं होता है? इट इज ओनली लिमिटेड टू यूट्यूब।
कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग। यस यस यस, कमेंट्स, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइबर्स, हाँ यू गेट एवरीथिंग रियल, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। सब्सक्राइबर्स भी उसको आएंगे, रियल के आएंगे। मतलब आप लोग दोनों बहुत ही स्क्यूड होते हो कि हमें फोकस यूट्यूब पे रखना है, सब्सक्राइबर अगर इसने कुछ पैसा दिया तो इसके लिए सब्सक्राइबर आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए और व्यूज आने चाहिए, राइट? व्यूज आने चाहिए। बेसिकली आर्टिस्ट को अब तक उतना नॉलेज नहीं है जैसे भाई स्ट्रीमिंग के बारे में। आर्टिस्ट को अब तक जीरो नॉलेज है स्ट्रीमिंग के बारे में। जहाँ तक मेरा नॉलेज पहुंचा है, जहाँ तक मैं जिन लोगों से काम कर रहा हूँ, उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी स्ट्रीमिंग कितनी बड़ी चीज है। उनको अब तक आइडिया नहीं, उनको अब तक वो माइंड नहीं पहुंचा कि स्ट्रीमिंग कितनी बड़ी चीज है भाई, कितनी बड़ी चीज है। अब तक उनको हमको आइडिया है, हम बोलेंगे पाजी काम करो, अपन 5 लाख रुपए स्ट्रीमिंग के लिए बैनर ले लेंगे, प्लेलिस्ट खरीदेंगे, ये करेंगे। उनको अरे मजा नहीं है, क्या करेंगे, नंबर थोड़ी दिखेंगे, नंबर मेरे को दिखने वाले यूट्यूब पे, इधर डालो 5 लाख रुपए, 2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। उनका ये पॉइंट है। तो गाना वायरल कहाँ से होगा? क्रिएटिव कॉल इसलिए हमारे पास होता है। अब अभी वापस में आता हूँ 20 लाख के ऊपर, ठीक है। अगर जैसी भाई आप मेरे पास लेके आए 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज में मेरे पास है, और हम लोग बेसिकली 20 लाख वाले करते रहते हैं प्रमोशन, तो भी नो है अभी तो 20 लाख अब लेके आए, मेरे पास 20 लाख है, ये मेरा गाना, ये मेरे गाने हैं 4, तू सुन, बता इसमें क्या कर सकता है। तो पूरी टीम बैठती है, गाने सुनते हैं हम लोग। बेसिकली गाने हैं क्या फील हो, गाने पकौड़े तो भाई पकौड़े, फिर गाने मजा नहीं आ रहे भाई, कुछ कर लो, गानों कुछ कर लो, वरना किसी से गाने खरीद लो। हमारे पास बैंक पड़ा पूरा गानों का, हमारे पास भी 20-25 गाने होते हैं बैंक में, हमारे कंपनी के होते हैं, तो हम लोग उनको पिच करते हैं कि भाई इसमें से गाना खरीद लो, प्रॉब्लम नहीं, होस्ट कर लो, आप दिक्कत नहीं है, विल डू दैट, नो वरी। जो भी आपको प्राइस पे करनी है आपको सिंगर को पे करनी पड़ेगी, आप डालो, पर ये गाने मजा नहीं आया, आप इस पे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डायमंड रिंग करूँ मैं, पूरे टाइम पे थे ना बॉम्बे में, डायमंड रिंग के टाइम हाँ मैं तो जो प्रोड्यूसर हमारे पास था, उनका एक सिंपल फंडा था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि अब हम लोगों ने गाने बहुत कर लिए, बहुत टाइम से हम लोग इंडस्ट्री में, ठीक है, हमें चाहिए रिटर्न। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, एक अमाउंट 20 लाख रुपीज, हमें चाहिए रिटर्न। अब बताओ रिटर्न कैसे लाओगे? तो टीम पूरी बैठती है, पहले गाना सुनते हैं। उन्होंने हम लोगों को कम से कम 20-25 गाने सुनाए भाई एक ही नाइट में। तो पूरा राउंड फिगर अगर हम लोग एक गाने के ऊपर है कि भाई ये गाना चलने वाला है। वो टाइम पे टिकटॉक बूमिंग पे था, हम लोगों ने 2 टिकटॉकर उठा लिए, वो टिकटॉकर्स को हम लोगों ने डाल दिए गाने में। तो हमारा तो 6 लाख रुपए तो दोनों में चले गए, जो दोनों की कास्टिंग फीस थी 6 लाख रुपीज। बट उनकी जो फैन फॉलोइंग थी ना भाई इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक की मिला के, दैट वाज अराउंड 50 मिलियन, 50, उनकी टोटल ऑडियंस थी। तो हम लोगों ने वो 6 लाख नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा कि सामने वाले को तो भाई रिटर्न चाहिए, रिटर्न कैसे लाएंगे हम लोग, उसको रिटर्न चाहिए ना, उसको तो हम लोग कुछ भी बनाओ, वीडियो पूरा कॉल हमारे पास दे दिया कि वीडियो भी तुम ही बनाओ, सब कुछ तुम करो, प्रमोशन भी तुम ही करो, मेरे को पैसा रिटर्न दो। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया, बेसिकली पूरी टीम ने गाने सुने, प्रोजेक्ट डिजाइन किया, और उन लोगों ने एक भी चीज पे नहीं बोला कि हम लोग को ये नहीं चाहिए, तुमको जो करना है करो, मैं सिंगर हूँ, मुझे 2-3 मिनट का गाना है, मुझे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए गाने में आना है, ठीक है। वो भी आ गए, उनको भी दिल ले लिया वीडियो में, प्रोड्यूसर भी वीडियो में आ गए, सब कुछ आ गया, उनकी ख्वाहिश पूरी। अब गाना हो गया हिट, 30 मिलियन का भी गाना आके पहुंचा हुआ है। मुझे उन लोगों ने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 20 लाख रुपीज रिटर्न नहीं हुए, बट एटलीस्ट 30% का रेशियो मेंटेन हुआ उनका, जो उनको पहले कभी नहीं मिला था। नहीं, गाना हिट का क्या मतलब है? कौन डिसाइड करता है गाना हिट है करके? हिट मतलब इन टर्म्स ऑफ, आई विल टेल यू, मैं उसके बाद आपको बताता हूं सॉरी मैं बहुत स्क्यूड हूँ, नहीं जरूरी आपको क्योंकि अगर आपके लिए वो हिट है तो मेरे लिए वो हिट नहीं भी है, मैंने तो सुना भी नहीं है कभी। ये 100%। तो कैसे होता पता है, इसका पता था डेफिनेशन बेसिकली कैसे वर्क कर दी। इसका मतलब ये है कि उनको चाहिए रिटर्न्स, उनकी तरफ बता रहा हूँ मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। उनको चाहिए रिटर्न्स। सेकंड चीज, रिटर्न्स क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए थे। जी पैसे। तो पैसे चाहिए तो मतलब 20 लाख रुपए डाले तो 20 लाख रुपए वापस चाहिए? नहीं, उनको रिटर्न्स चाहिए, उनको शो होना चाहिए कि रिटर्न्स मेरे क्या आ रहे हैं, बताओ। अगर स्टार्टिंग में आरओआई क्या है? आरओआई क्या है? यस, आरओआई क्या है। तो उसके बाद हमने काम किया, ठीक है, गाना स्ट्रीमिंग पे चला, गाना पे ऑलमोस्ट कुछ 3 मिलियन स्ट्रीम्स है उसके। नहीं 3 मिलियन नहीं, कुछ तो 3 लाख में, कुछ तो लाख में। अगर आपको मैं लिंक शेयर करूँ उसका अभी। ओके, नहीं, हेलो कुछ यूट्यूब से। हाँ अभी ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। वो हेडफोन से बेटर आवाज आ रही है। की आवाज बिल्कुल भी हेडफोन्स नहीं है। हेलो
सिर्फ दोनों की आवाज नहीं आ रही है। हम लोग बोल रहे हैं। श्रवण, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस यस यस, परफेक्ट, हाँ अभी आ रही हाँ है। हाँ। ओके, सो गाना स्ट्रीमिंग पे थोड़ा बहुत चला, 1-2 लाख उसके ऊपर स्ट्रीम्स आए वहां से भी, बिकॉज हमारा टाइप बिलीव के साथ है, बिलीव म्यूजिक के साथ है टाइप। तो वहां से हमें कुछ पैसे आए थे जो बेसिकली उनको दिखाने थे सामने वाले इन्वेस्टर को कि हमारे पास हम लोग फंडिंग लेके आपको रिटर्न्स भी कर सकते हैं आरओआई के साथ। तो हमारा वो गाना पहला एक्सपेरिमेंट था। वी स्टार्टेड द चैनल विद 0 सब्सक्राइबर्स, नाउ इट इज हैविंग 3 लाख सब्सक्राइबर्स। तो 3 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा बेस भी बन गया, हमारा 30% का आरओआई रिटर्न भी आ गया, स्ट्रीमिंग पे गाना अच्छा चल रहा है और गाने के ऊपर 30 से 35 मिलियन व्यूज है गाने के ऊपर ओवरऑल। ठीक है। तो उनको एक अच्छा फेम मिला बिकॉज उन लोगों ने हमें दिया, मतलब एक अच्छा डिसेंट फेम मिला, लोग उनको जानने लगे कि भाई इन लोगों ने गाना कुछ किया था मार्केट में। जो भी उनके सर्कल भी होंगे, आई डोंट नो, जहां तक उनका गाना पहुंचा। राइट। तो उनके एक्सपेक्टेशंस थे, उनके हिसाब से हम लोगों ने करके दिया कि भाई बट ये कब हुआ? जब ये पूरा क्रिएटिव कॉल हमारे पास था। अगर आप वीडियो बना के लेके आओगे या कोई आर्टिस्ट बना के लेके आएगा वीडियो, भाई इसको जाओ प्रमोट करो, तो वो नहीं होने वाला है। सो हम बेसिकली परुल भाई वो टाइम पे बॉम्बे में थे, परुल भाई की बहुत सारी हेल्प लगी थी उसमें, वो गाने में भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे गाने को कैसे प्रमोट करना है। ना हम लोगों ने होर्डिंग्स लिए थे, ना हम लोगों ने कुछ लिया था, ना कुछ लिया था, ना हम लोगों ने एडवर्ड्स रन किया था उसके ऊपर। मुझे 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 बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आप, मतलब इसका मतलब तुम लोग सब मिलके एक फुल सर्विस एजेंसी बन जाते हैं। फुल सर्विस आ जाओ, फुल सर्विस। मतलब बहुत चैलेंजिंग भी होता होगा आई एम श्योर, बट मजा भी आता होगा क्योंकि ये एग्जीक्यूट करने में भी बड़ा चैलेंजिंग है। 3 days we are shooting the song by 3 days non-stop, nobody was sleeping. Absolutely, absolutely, Sorry. absolutely. तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो पारुल, मैं आई विल कम टू यू सिंस आप नॉर्थ के मार्केट से हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ, मुझे वहाँ की क्रिएटर्स की कुछ मेंटालिटी बताओ ना, कैसा होता है अगर वहाँ पे वीडियो बनता है? क्या क्या मेंटालिटी के साथ आते हैं हम लोग? सो पंजाबी इंडस्ट्री का अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाबी सॉन्ग आप सबने सुने ही होंगे बेसिकली। अभी पंजाबी सॉन्ग कहाँ पे नहीं बजते आजकल, तो साउथ में क्या, दिल्ली, सब जगह बजते हैं अब तो। और उनका क्या सीन है, उनका है कि प्रॉपर उनको दिखाना होता है। आप कोई भी वीडियो उठा लो, कोई भी वीडियो, उसमें आपको गाड़ी पूरा ऐसे दिखेगा, गाड़ी, लड़कियां, दारू बहुत पक्का दिखाते हैं ये लोग। तो उनका ये सीन भी है क्योंकि इधर की ऑडियंस का क्या है ना, वो देखते ही ये सब चीजें, इतना जितना आप शो ऑफ दिखाते हो ऑडियंस को, तो वो उतना ही उस पर थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं ऑडियंस, इधर की ऑडियंस ज्यादा। तो वो उस बेसिस पे सॉन्ग बनाते हैं। प्लस उनको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अभी आप देखो कि कोई भी सॉन्ग, अभी जैसे इसमें एक सिंगर शायद आपने नाम सुना होगा, सिद्धू मूसेवाला। अभी जो मतलब अल्टीमेट, जब भी उनके सॉन्ग आते हैं ऑलमोस्ट, मैं बता रहा हूँ, अगर वो कुछ भी लिख देते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें इतने कमेंट्स चाहिए तो हम पोस्टर रिलीज करेंगे, तो ऑडियंस 2 घंटे में तो उसको 1 मिलियन 2 मिलियन कमेंट कर भी देती है, अगर एक वो वहाँ पे कैप्शन में लिख देते हैं। तो लोगों का वहाँ पे मैं उस दिन इंस्टाग्राम देख रहा था और मैं सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं देख रहा था वो लाइव आया, जब वो लाइव बटन दबाया होगा ना उसने, आई स्वेयर ऑन गॉड he had 50,000 people watching him start button पे, start 50 at the start of Instagram ठक किया। और वैसे और मुझे लगा मैं ही फर्स्ट रहेगा जिसने जाके देखा तो 50,000 लोग उसको ऑलरेडी देख रहे हैं। भाई बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज। जैसे पंजाबी ऑडियंस मतलब सिर्फ सॉन्ग सुनती नहीं है, वो एक तरफ से ना इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। परुल भाई सो सॉरी, मैं आपको कट करूंगा 2 मिनट के लिए कि मैं बीच में ना शादी में गया था, मेरे भाई की शादी थी गांव में, ठीक है, महाराष्ट्र से हूँ मैं, मेरा गांव है यहाँ पर। तो मैं शादी में गया था वहां पर, एंड वहां पे हल्दी के नाइट होता है, हम लोग को बेसिकली हल्दी नाइट होती है जहाँ पे सब पूरा डीजे सेटअप होता है, पब्लिक नाचती है बेसिकली। तो वहां पे सबसे ज्यादा गाने पंजाबी थे भाई। मैं थोड़ा शॉक हो गया चीज सुन के। मैं बोला ये हुआ कब, सो सॉरी, बट ये बोला हुआ कब ये, बट लोगों तक गाने पहुंच रहे भाई। ये 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज आते कहाँ से? यही लोग हैं, यही तो लोग हैं, यही लोग हैं भाई, यही ऑडियंस है। यस पारुल कंटिन्यू सिद्धू मूसेवाला। प्लीज। तो क्या है, पंजाबी ऑडियंस का ना बाकी ऑडियंस से मेरे ख्याल से पंजाबी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव ऑडियंस है। बाकी अगर मैं किसी ऑडियंस से अगर आप कंपेयर करूं उसको, तो पंजाबी ऑडियंस हर सॉन्ग में इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो सिद्धू मूसेवाले की फैन है तो वो उस सॉन्ग में इन्वॉल्व है, और सिद्धू मूसेवाले को कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो पता नहीं क्यों क्या है ऐसी मेंटालिटी है लोगों की, फिर तो वो खुद भी लड़ने लगते हैं उसके पीछे बिल्कुल। तो वहाँ की ऑडियंस इतनी एक्टिव है ना कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको उनको बार बार वो प्रमोशन की इतनी जरूरत नहीं है। आप एक बार उसको सॉन्ग उनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फर्स्ट सॉन्ग हिट है तो उसके बाद कंटिन्यूसली वो 3 सॉन्ग 4 सॉन्ग 5 सॉन्ग कंटिन्यूसली उनके हिट होते हैं। 100% होता है उनका, क्योंकि ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व हो जाती है ना उसके साथ, इतने इमोशंस के साथ। उनको सॉन्ग अच्छा लगता है, वो शेयर, लाइक, कमेंट सब, मतलब इतना
पारुल, सॉरी मैं आ रहा हूँ बीच में, कि क्या आपके पास कोई नया पंजाबी आर्टिस्ट कभी आया था और उसने आपको बोला मैं ये गाना रिलीज करना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हो, ऐसा कभी हुआ है बात? तो बेसिकली प्रमोशन के लिए ऐसा है कि मेरे पास पहले सॉन्ग्स वगैरह काफी जो भी सॉन्ग रिलीज होना, तब सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग आया था, जट दा मुकाबला नाम था उसका। हाँ तो उस सॉन्ग मतलब उस टाइम तो वो स्टार्ट होने मतलब उसमें 1-2 सॉन्ग आए थे उनके, तो वो सॉन्ग आए थे हमारे पास, वो अपने पेड प्रमोशन के लिए थे वो हमारे पास, और वो ऑलमोस्ट पहले काफी हिट हो चुके थे। तो नए सिंगर्स हमारे लिए जो हमारे पास आते हैं वो बेसिकली आते हैं उनको ब्रांड्स के लिए, क्योंकि अब वो देखते हैं हम वेब सीरीज को कोलैब, वेब सीरीज के साथ ब्रांड कोलैब कर रहे हैं, तो वहां से हमारा लोगो देखते हैं, कॉल करते हैं कि वो सर हम भी कुछ ऐसा बना रहे हैं, सॉन्ग्स बना रहे हैं, हम वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, पर क्या है कि अभी उनको सेविंग है वो वहां पे लग जाएगी, पर उनको रिटर्न भी तो चाहिए ना उसको कुछ, कि तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए हमारे पास जरूर कॉल आते हैं, तो हम उसको थोड़ा देखते हैं उस चीज पे। अभी आगे भी एक सीरीज आने वाली है, नई सीरीज होगी बिल्कुल, वो अभी उसका प्रॉपर चल रहा है प्लानिंग वगैरह। तो प्रमोशन के लिए तो बहुत कम, बट कोलैबोरेशन और स्पॉन्सरशिप्स के लिए काफी नए सिंगर्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के कॉल आते हैं। तो नहीं, ये मैंने इसलिए पूछा पारुल क्योंकि आपने बोला कि फर्स्ट सॉन्ग तो ऐसा होता है, आपने तो बहुत सारे गाने देखे होंगे ऐसे, तो कि एक आर्टिस्ट आया, उसने अपना पहला गाना रिलीज किया, उसको कोई नहीं जानता, राइट, और वो गाना पिट गया, किसी ने सुना ही नहीं वो गाना। हाँ, तो क्या वो उसके बाद दूसरा गाना निकालता है, या मतलब कैसा होता है उधर? नॉर्थ का सेंटिमेंट जानना चाहता हूँ मैं, वो क्या करता है, कैसा होता है? क्योंकि मैं तो जो अभी नॉर्थ रीजन में अगर आपको बताऊं, कोई फर्स्ट सॉन्ग निकाल रहा है, बिल्कुल नया सिंगर है, तो सबसे बेस्ट चीज क्या है हमारे इस इंडस्ट्री की, कि सारे सिंगर्स ना एक दूसरे से इतना अच्छे से वेल बिहेव हैं, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट सॉन्ग आते तो इतना लोग सपोर्ट करते हैं, सिंगर सपोर्ट करते हैं उनको, बिल्कुल मतलब वो स्टोरी स्वाइप अप वगैरह, शाउट आउट वगैरह, सब सिंगर्स उनको इंस्टाग्राम पे देते हैं वो शाउट आउट वगैरह। कुछ तो अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी दिलजीत दोसांझ, आपने अभी दिलजीत दोसांझ को लोग देखते हैं, सुनते हैं इतना, बट दिलजीत दोसांझ के जो पहले वाले सॉन्ग्स आपने शायद अभी तक नहीं सुने होंगे। अभी डू यू नो के बाद शायद मुंबई में काफी वो लोग सुनने लग गए, बाकी स्टेट्स वाले सुनने लग गए, पर हमने उससे पहले के भी उनके सॉन्ग सुने हुए हैं। तो उनको जो क्या रहता है कि पूरी इंडस्ट्री उनको इतना सपोर्ट करती है, मतलब कोई भी नया सिंगर है, अब नया सिंगर किसी एक एजेंसी है, मैं आपको नेम अगर उसका लूँ तो गीत MP3, और उनका जो प्रमोशन वाली एजेंसी है वो जीके डिजिटल, वो सेम ही पर्सन की है। तो वो क्या करते हैं, वो सॉन्ग शूट करते हैं म्यूजिक वगैरह के लिए प्रॉपर, फिर देन उसका प्रमोट करते हैं। तो क्या होता है, उनके सारे सिंगर्स के जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल्स हैं, वो सब उनके पास है। तो जो भी नया सिंगर्स है उनको एक हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, वो जैसे ही वो सॉन्ग पोस्टर रिलीज होता है, सारे सिंगर स्टोरी में पोस्ट करते हैं उसको, सॉन्ग को स्टोरी में शेयर करते हैं, प्लस स्वाइप, जब वो सॉन्ग आ जाता है स्वाइप अप वगैरह होता है, प्रॉपर थोड़ा बहुत पेड प्रमोशन भी होता है। तो अगर आप देखो तो 10 आर्टिस्ट भी, अगर जस्सी गिल हो गया या दिलजीत दोसांझ प्लस बाकी आर्टिस्ट, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर कोई किसी नए सिंगर को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ईजी हो जाता है एक दूसरे सिंगर के लिए। अगर कोई देख रहा है, जस्सी गिल के फैंस अगर स्टोरी उसकी देख रहे हैं कि ये सॉन्ग किसी नए सिंगर का हुआ है, तो वो लोग स्वाइप अप करते हैं, जाके सॉन्ग देखते हैं। अब फिर देन वही चीज आ जाती है कि कंटेंट कैसा है, लिरिक्स कैसे हैं, तो लिरिक्स भी अगर अच्छे हैं तो वो फिर वही है, ऑडियंस इतना उसको शेयर भी करती है, फिर लाइक भी करती है और कमेंट भी करती है उस चीज पर। तो मेन तो वही है कि सारी सिंगर्स मिलके उसको प्रमोट करते हैं यहाँ पे। पारुल, कितना डिफिकल्ट होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप ब्रांड्स की तरफ भी काम करते हो, राइट? तो आपने म्यूजिक वीडियोस के लिए, जैसे आपने टैग डॉग, आपने और टैग डॉग ने मिलके म्यूजिक वीडियोस के लिए भी ब्रांड्स को लाया हुआ है, तो आप ब्रांड्स को कैसे लाते हो, या क्या, कैसे कैसे होता है ये? तो जब हम स्टार्टिंग में श्रवण और हमने जैसे स्टार्ट किया था अध्ययन सुमन के लिए, हैपन सॉन्ग के लिए, हाँ, तो उसमें मुझे जब बताया था इन्होंने स्टार्टिंग में कि ये सॉन्ग आने वाला है अपनी, एंड उसमें उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये सॉन्ग ट्रेवल पे है बिल्कुल, जिसमें हमको अध्ययन सुमन का ऐसा स्टोरी दिखाएंगे कि वो ऑफिस में जाता है, डेली ऑफिस रूटीन है उसका, और बोर हो चुका है वो, उसको बाद में कोई एक उसकी फ्रेंड मिलती है, जिसके साथ वो बाद में घूमने वगैरह वो जाते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चीजें। तो उस पे हमने सोचा था कि हम क्या कर सकते हैं। म्यूट है शरण भाई आपका, म्यूट है। मैंने म्यूट किया था, सॉरी। ओके, अनम्यूट, हाँ हाँ,
हो गया। सो बेसिकली डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ना पहले स्टोरी क्रिएट होती है, जो कि सिंगर होता है, जैसे आद्यन के टाइम में वही हुआ था, आद्यन के टाइम में वही होता कि भाई ने पहले स्टोरी क्रिएट की थी कि ब्रो दिस इज द स्टोरी लाइक दैट वी हैव। अब इसके ऊपर बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक पूरा हम लोग ने लाइनअप रेडी किया था कि भाई इसमें ये ब्रांड जा सकते हैं। सो हम लोग को 10 ब्रांड थे ना हमारे पास, जो हम लोग जिसको पिच करना था। अब ट्रैवलिंग पे था तो हम ये भी सोच रहे थे कि हम बैग के लिए भी कोई बैकपैक के लिए देख लें, हम कोई स्पीकर्स वगैरह के लिए देखें, हेडफोन्स के लिए देख लें। तो उस टाइप से हमने एक प्रॉपर पहले लिस्ट बना ली थी ब्रांड्स की कि हम जिनको अप्रोच कर सकते हैं सॉन्ग के, जिसमें कंटेंट को भी इफेक्ट ना हो और सॉन्ग में हम प्रमोट भी कर दें किसी ब्रांड को और ऑडियंस तो वीडियो बायस ना हो। नहीं, ब्रांड को इसमें क्या दिखता है? इसमें ब्रांड को अध्ययन सुमन दिखता है, मतलब अध्ययन सुमन की वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रांड के लिए। यस हाँ, वो एक है फैक्टर है वो एक। हाँ, और बेसिकली डिलीवरेबल्स हम लोग डिलीवरेबल्स भी देते हैं ना ऐसे वाले कि वो लोग ना नहीं कर पाते। नहीं, और क्या फैक्टर्स है पारुल? अगर आर्टिस्ट नहीं है तो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो आर्टिस्ट नहीं है तो पहले तो लेवल भी एक मेन फैक्टर है मेरे ख्याल से। लेवल अगर अच्छा है तो थोड़ा ब्रांड्स को इजी हो जाता है। अगर टी सीरीज या जी म्यूजिक पे सॉन्ग जा रहा है तो ब्रांड्स को थोड़ा कन्वर्ट करने में इजी हो जाता है। तो टी सीरीज को अगर कोई ब्रांड विश में आता है तो चलता है कि वो लोग पैसे मांगते हैं? हाँ, नहीं अभी कोई नहीं। तो वो सॉन्ग वो सिंगर्स पे डिपेंड करता है कि उनको कैसे वो हैंडल करना है। मेरे पास जब वो आता है तो हम प्रॉपर एक स्टोरी हमें पता होती है, हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें हम कोस्ट, डिलीवरेबल्स, कितने टाइम का हम स्लॉट आपके ब्रांड को देंगे, कैसे हम प्रमोट करेंगे, स्टोरी में कैसे इंटीग्रेशन होगा, वो सब हम उस बेसिस पे उसको हम पिच करते हैं ब्रांड्स को। तो अभी तक डिलीवरेबल्स, हाँ बोलिए। डिलीवरेबल्स हम इस टाइप से उनको देते हैं ब्रांड्स को थोड़ा लगे कि अगर वो, अब आप जैसे सोचो कि हैपन ब्रांड है, और हैपन ब्रांड नॉर्मली अपनी एक वीडियो बनाता यूट्यूब पे या वो डायरेक्ट प्रमोट करता है एप्लीकेशन को, तो उनके कितनी कॉस्ट आती है? एक 5 to 10 लाख कॉस्ट आती है। और भाई हम 5 लाख अगर हम उनसे लेकर किसी सॉन्ग में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर इंटीग्रेशन फॉर लाइक 20 सेकंड्स, प्रॉपर इंटीग्रेशन। हाँ, अभी जैसे हमने वो हैपन का किया तो हैपन में हमने प्रॉपर उसमें दिखाया था कि अजंसो में यूज कर रहे हैं हैपन, उसमें उनको मैच आया रुचि दत्ता के साथ। अच्छा, बेसिकली परुल भाई सॉरी एक सेकंड वापस रुकूंगा आपको। तो बेसिकली जो हैपन का इंटीग्रेशन था ना भाई, अगर आप क्लोजली देखो ना उसको एज अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, तो बेसिकली हैपन की ऐड लगती है। स्टार्टिंग के जो 20 सेकंड्स है ना जो हम लोगों ने शूट किए थे ना, वो एक हैपन की ऐड लगती है। वो इंटीग्रेशन नहीं है, वो ऐड बनी उनके लिए। सो वहां पे डिलीवरी में वो भी था कि आप एज अ ऐड भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है। मैं ये टॉपिक पे एक्चुअली ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फिर से आर्टिस्ट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। I'll get you back here कि कितना कि अगर वो एक अपकमिंग आर्टिस्ट है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो SEO, यूट्यूब, ये सब के बारे में जो हमने डिस्कस किया, किस लेवल के बाद उसे आप जैसी एजेंसी के पास आना चाहिए? किस लेवल को अचीव करने के बाद? तो अगर मैं अपने पॉइंट से बताऊं तो मेरे ख्याल से मैं तो यही सोचता हूं कि कोई अगर जिस स्टार्ट ही कर रहा है, जो मैं तो बोलता हूं कि आप अगर कोई सिंगर मेरे पास स्टार्टिंग में अगर कोई आ रहा है तो मेरे लिए एक अच्छी चीज ये है कि अगर मैं उसको कुछ अच्छा, मतलब उसके वीडियो को हिट करने में अगर उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ, अगर वो हो भी जाता है, वायरल हो जाता है सॉन्ग, तो मेरी एजेंसी के लिए पहले वो बेस्ट है। कोई नए सिंगर्स को जीरो से अगर आप उठाते हो या उसके सॉन्ग को आप जीरो से स्टार्ट करते हो और एक अच्छे लेवल पर ले जाते हो, तो शायद एजेंसी के लिए ज्यादा फायदे वाला वही चीज है कि आप एक केस स्टडी बना सकते हो उस चीज पे, अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो उस चीज को कि हाँ हमने जिस सिंगर्स का फर्स्ट सॉन्ग था, हमने फर्स्ट सॉन्ग से ही उनको इतना अच्छा हाइप क्रिएट करके दिया। श्रवण, व्हाट अबाउट यू? क्या लगता है कि कभी एक आर्टिस्ट ने एजेंसी को अप्रोच करना चाहिए? एजेंसी को अप्रोच तभी करना चाहिए जब आपके पास पैसे हो। यस, बिकॉज़ एजेंसी भी एक बेसिकली एक टीम है लोगों की। उनको भी तो नीड है ना पैसे की। वो लोग भी एक इतना बड़ा स्पेस लेके बैठे हुए, इतनी बड़ी टीम लेके बैठे, तो उनको भी वो पैसे मैटर करेंगे हमेशा। बट अगर आप इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके से आप इंडिविजुअली करना चाहते हो। एमवे बंटा है, कोई एजेंसी की जरूरत नहीं थी, उसने खुद की टीम बिल्ड की है। सो खुद की टीम बेसिकली वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। तो आजकल सभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो उनको बेसिकली आर्टिस्ट को एजेंसी की जरूरत भी नहीं है। अगर ऑनेस्टली बताओ तो नहीं जरूरत है उनको, वो घर पे बैठे भी खुद भी एडवर्ट कर सकते हैं, आने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, तो कर भी रहे हैं, काफी लोग कर भी रहे हैं। हाँ, यस। लॉकडाउन के बाद मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा मेजर लॉसेस भी हुए। चैनल खुद के बन गए हैं सबके, प्लस
टीम खुद की बन गई है, एडिटिंग वाली, प्रमोशन वाली, काफी अभी इंडिपेंडेंट वर्क कर भी रहे हैं काफी सिंगर। कोविड के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है क्रिएट, सब लोग अपना अपना करे, सो अच्छी भी बात है, अच्छी बात भी है, एक उनका स्पेंड नहीं हो रहा है। एक अटेंडी ने क्वेश्चन पूछा है जो इकलौता क्वेश्चन है कि हाउ अबाउट नीश ऑडियंस फॉर एन अंडरग्राउंड म्यूजिक आर्टिस्ट। ठीक है, तो अभी अंडरग्राउंड मतलब क्या बोलना चाहते हो अपने आप को? आप मतलब आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, डिवाइन भी था एक टाइम पे, मतलब कैसा, अभी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोग एक जेनरिक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कौन सा म्यूजिक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक अंडरग्राउंड है क्या वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग एक जेनरिक लेते हैं, हम लोग सोचते हैं हिप हॉप, चलो ठीक है, हिप हॉप। अगर हिप हॉप कोई जॉनर है अबाउट नीश ऑडियंस, तो हाउ अबाउट नीश ऑडियंस? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप ये क्वेश्चन फिर से दीजिए। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हाउ टू अप्रोच स्पॉन्सर्स और प्रोड्यूसर्स हु कैन इन्वेस्ट इन माय म्यूजिक वीडियोस एंड प्रमोशंस फॉर द सेम? हाउ कैन एन आर्टिस्ट विद नो कॉन्टैक्ट्स कैन फाइंड these people? so कौन क्वेश्चन लेना चाहेगा? ये पारुल आप लेना चाहेंगे क्वेश्चन? या श्योर, हाउ टू अप्रोच मतलब वो बेसिकली जानना चाहता है कि वो उसके पास कंटेंट है, वो एक आर्टिस्ट, टू अप्रोच स्पॉन्सर्स और प्रोड्यूसर्स, पर वो अप्रोच कैसे अप्रोच करे? हां, कैसे अप्रोच करे तो स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना है तो आपके पास एक प्रॉपर जो भी आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हो या आप कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक स्टोरी होनी चाहिए। पहले तो आपके पास प्रॉपर एक बना होना चाहिए कि ये हमारा प्लॉट रहेगा स्टोरी का। तो आप उसको, अगर ब्रांड को आप बता रहे हो एक प्रॉपर कि कैसे उनको इंटीग्रेशन कैसे होगा, आपके डिलीवरेबल्स होने चाहिए आपके पास, और डिलीवरेबल्स भी ऐसे होने चाहिए कि जिससे वो कन्वेंस हो सके सामने ब्रांड, क्योंकि ब्रांड्स को अगर फायदा नहीं होता तो ब्रांड्स वाले बहुत जल्दी ही इस चीज से हट जाते हैं कि नहीं यार कोई इसमें बन नहीं रहा, क्योंकि उनके ऑलरेडी काफी एजेंसीज उनको अप्रोच कर रही होती है। अब प्रोड्यूसर को भी आप कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर को अगर आप अप्रोच करोगे तो शायद उनको रिटर्न भी आपको बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न होगा। प्रोड्यूसर सबसे पहले रिटर्न की बात करेगा। हाँ, क्यों इन्वेस्ट करेगा? नहीं तो प्रोड्यूसर भी सबसे पहले तो उनको बहुत सब चीजें। तो मेन मैं बोलूँ तो मेन तो कंटेंट पे आकर ही होता है कि आपका कंटेंट अच्छा है तो कोई प्रोड्यूसर पक्का आप इन्वेस्ट करेगा। प्लस अगर आप उनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप बताओगे कि आप रिटर्न भी कैसे उनको जनरेट करके दोगे, तो इन्वेस्ट प्रोड्यूसर जल्दी आपके साथ कर सकता है। To the attendee who has asked this question, I just want to tell you that the way Parul and Shravan has discussed, the important thing here for you to understand is to consistently create content on different channels. Keep on doing that consistently. You don't have to go to the brands will automatically get in touch with you because you're doing really great and your content speaks for yourself. So keep your complete focus on creating good content. Just keep yourself in the studio, keep on sharing your content with the right close set of people and tell them, ask them how is the song, what do you feel about the song, get their reviews, because these are the most important people who will give you right reviews. Get that things and start posting. It can be a studio video. I have myself, just go on my YouTube page, I have myself promoted artists who have done really good music. So the most important thing for me, Parul and Shravan, is that you should have your good music. Your music will talk. Okay. Now I'm going to take the third question. Can you please elaborate on progress of getting playlist placements? What's the whole process? Can an independent artist do it by himself? Anup, first of all, we are not discussing here about playlist in this particular show. This show is completely about how music videos is done. But if you want to talk about playlist, I am going to get definitely somebody from in my next shows. I will try and get Paddy from Spotify. I'm thinking I've already spoken to him. I'm going to get him on my show so that you understand how you get playlists on Spotify. It's a very interesting topic. Currently in India, playlisting is not that big. It is catching up. There are a few independent artists who are really working hard, and one of the best examples of playlist is Pratik Kuhad. Pratik Kuhad has become big just because of playlist. But I'll tell you how it happened. Pratik Kuhad has a international PR agency. That PR agency, it's also his management company. Now he's signed with Elektra Records. Pratik Kuhad
agency helped him get his song playlisted on Barack Obama's playlist, and Barack Obama's playlist was something that when Barack Obama put it out on social media saying that this is my playlist, Yeah. and Pratik Kuhad was there. That's how he became big. Playlisting is really very big. I'm going to get from Spotify, somebody from Spotify to talk about it. Very good. But this is not the one show. Uh, and slowly, even YouTube. Have you guys seen YouTube has started doing playlisting? Yes. Have you Big seen thing, that? man. Big thing. But अभी वहाँ पे बहुत सब बड़े म्यूजिक वीडियोस है right now. I've Okay, seen that, so but yeah, big so music videos आता है. yeah, so we are going to come on that. Hope I've answered your question. Can independent artists do it by themselves? Yes, independent artists can do it by themselves. The most important thing to do is create a good EPK. Like Parul said, you should have a storyboard that you should be sending. What's the crust? Why an editor sitting in Spotify, Savan, Ghana, Tidal, iTunes should feature a song? You need to have a good story, Anup. Create that story. If that story is connecting to the editor sitting in all these platforms, he will make sure that your song is in playlist. A lot of my bandage music, we know how songs are getting playlisted. So if your story is good, all these guys who are sitting, all these employees, A&R guys sitting in the streaming reso, if their story is connecting, they will definitely promote you. Hope I've answered your question. I'm going to come quickly on the panelists. Wait, Shravan, मैं एक हाँ प्लीज. मैं जो सेकंड क्वेश्चन था, हाउ टू अप्रोच स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सर्स और प्रोड्यूसर, तो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि उसमें अगर स्पॉन्सर्स को आप कोई भी म्यूजिक वीडियो अगर आप बना रहे हो और स्पॉन्सर्स आपको बेसिकली स्पॉन्सर्स आते हैं तो काफी हेल्प हो जाती है आपके लिए. एक स्टार्टिंग में आपके पास पैसे भी होते हैं जो आप वीडियो को और प्रमोट करने के लिए स्पेंड कर सकते हो और एक वैल्यू भी बन जाती है उस वीडियो की. तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो. तो लिंक्डइन आप यूज करो जितना हो सकता है बेस्ट है, क्योंकि मैं वही यूज करता हूँ अभी इस टाइम पे. क्योंकि आपको हर एक एजेंसी, हर एक ब्रांड का आपको वहाँ पे फाउंडर तक का आपको कोई मिल जाता है. फाउंडर तक आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, मार्केटिंग हेड से आप बात कर सकते हो. तो उनको आप वहाँ पे उनको मैसेज करो कि मेरा ये एक म्यूजिक वीडियो हम रिलीज करने वाले हैं, ये स्टोरी. या आप एक प्रॉपर एक केस प्रेजेंटेशन पीपीटी बना लो आप एक, जो उनसे वहाँ पे बात करके आप मेल आईडी वो आपको दे देंगे और आप मेल कर सकते हो. तो लिंक्डइन के थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो स्पॉन्सर्स को. सबसे इजी मेरे लिए वही है. मैं वही जितने भी स्पॉन्सर के साथ वर्क करता हूँ तो मैं फर्स्ट उनको लिंक्डइन पे देखता हूँ कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं, मार्केटिंग पर्सन से कनेक्ट करता हूँ एंड उनसे थोड़ा बहुत वहाँ पे चैट करता हूँ. उनका मेल आईडी या उनके साथ एक बार कॉल शेड्यूल होता है तो ईजी हो जाता है थोड़ा आपके लिए स्पॉन्सर्स को कन्वर्ट करना. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा बात कर चुके हैं और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना. मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं मतलब इसमें कहीं पे भी इस कॉन्वर्सेशन को लेके जा सकता हूँ. और जब इतने इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट मेरे साथ हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, हम लोग अभी इसके बाद एंड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोग दोनों को. मैं आप लोग दोनों ऐसे कुछ, आप लोगों ने इतना काम किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप लोग ऐसे कुछ 3 से 4 वैल्यूएबल टिप्स आर्टिस्ट या उनके मैनेजर्स को दीजिए जो उनको उनकी नेक्स्ट रिलीज में काम आए. तो ऐसे कुछ एक 3-4 वैल्यूएबल टिप्स. पारुल, विल स्टार्ट फ्रॉम यू. सो मैनेजर्स और या जो भी सिंगर्स हैं या खुद वो जो करने वाले हैं, तो फर्स्ट आप स्टोरी लाइन पे और कंटेंट पे थोड़ा फोकस करो. कंटेंट मेरे ख्याल से कंटेंट आपका 50% जो आपका होता है, 50% अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप म्यूजिक वीडियो को और ज्यादा पिक कर सकते हो. और सेकंड उसमें क्या आपको क्या है ना, अभी आप जितना भी पढ़ोगे उसके बारे में या आप सर्च करोगे तो शायद उस चीज से आपको इतना नॉलेज, अगर आप एक बार उसको स्टार्ट करोगे, जैसे प्रमोशन का है तो अगर आप गूगल एड्स के थ्रू या आप थोड़ा पढ़ोगे उसके गूगल एड्स के बारे में या आप टैग्स के बारे में, कीवर्ड्स में ना, अभी यूट्यूब वीडियोस पे अगर आपको अपने सॉन्ग को वायरल करने के लिए करना है तो आप जितना आप उसको ट्राई करोगे, आप कुछ टूल्स वगैरह आप सर्च करो कि आप किससे कीवर्ड्स वगैरह और डिस्क्रिप्शन, थंबनेल कैसे आपके होने चाहिए. तो वो सेकंड पॉइंट है कि आप उस पर थोड़ा फोकस करो, जिससे आपको काफी व्यूज वगैरह के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी. और मैनेजर्स के लिए, अगर आप वही स्पॉन्सर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो आप प्रॉपर एक पहले आपको डिलीवरेबल्स लेबल आप ट्राई करो कि आप बड़े से बड़े लेवल पे म्यूजिक रिलीज कर सको. जी म्यूजिक या टी सीरीज आप रिलीज कर सको.
तो उससे एक स्पॉन्सर के लिए थोड़ा एक मेन फैक्टर हो जाता है कि आपको इजीली वो कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इजीली स्पॉन्सर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिलीवरेबल्स वगैरह उस टाइप से। और कुछ उनको स्टोरी इस टाइप, अगर कोई भी आप ब्रांड अप्रोच कर रहे हो तो एक ऐसी स्टोरी लाइन ऐसी बनाओ कि आप उसमें ब्रांड को इतने अच्छे से इंटीग्रेशन दे रहे हो, जिस भी ब्रांड को आप अप्रोच कर रहे हो उनको दिखाओ कि हमारा ये स्टोरी लाइन है, तो आप कितने अच्छे से उनको परफेक्ट वे में आप उनके इंटीग्रेशन आप उनको दोगे, जिससे उनको डाउनलोड्स, अगर ऐप है तो डाउनलोड्स, नहीं तो अवेयरनेस, उनको एक अच्छा अवेयरनेस मिलेगा। तो यही है थर्ड पॉइंट। अगर स्पॉन्सर्स आपके पास आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी। अगर आप अच्छा फर्स्ट वीडियो उनको अच्छे डिलीवरेबल्स डिलीवर कर देते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए आगे का रास्ता तो और ईजी हो जाएगा। थैंक यू पारुल। इसके पहले कि श्रवण यू आंसर दिस क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन श्रवण मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट था, मैं भूल गया एक्चुअली बीच में, कि अभी फिलहाल टिकटॉक तो है ही नहीं मार्केट में, तो क्या सिचुएशन है हम लोग, मतलब आर्ट क्रिएटर के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, या ये सिचुएशन कैसी है, मार्केट में कोई प्लेयर आ रहे हैं क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करो ना भाई। पेड की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो वो अलग जगह पर है। राइट नाउ रील्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम। एक अच्छे गाने को, नॉट द टिकटॉक वाला गाना, एक टिकटॉक का कंटेंट अलग हो जाता है, रील पे थोड़े से अच्छे लोग हैं वहां पर। अच्छे लोग का मतलब है कि उनके टेस्ट थोड़ी अच्छी है म्यूजिक की। इंस्टाग्राम पे लोगों की टेस्ट म्यूजिक की अच्छी है, टिकटॉक से 1000% बेटर है। तो वहां पे ऐसे गाने हो रहे हैं आजकल प्रमोट जो अच्छे गाने से। वी वायरल हो गया रिकॉर्ड लेबल, यू नो वी वायरल, राइट जैसी भाई, वी वायरल, देन टाइम्स म्यूजिक, देन समझ गया। 2-3 म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल जो अच्छे रिकॉर्ड लेबल, जो पहले से अच्छे गाने बनाते हैं, उनकी गाने वहां पे अच्छे रील्स बन रहे हैं उसके ऊपर। जो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, बाकी इंटरनेशनल सॉन्ग्स बहुत चल रहे हैं वहां पर, तो लोग वही गाने सुन के वहां पे प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, नए गाने वहां पे नहीं आ रील्स, अभी रील्स के लिए आप कर सकते हैं, क्रिएटर्स जो भी कर रहे हैं अभी रील्स पे ज्यादा अगर फोकस, क्योंकि लॉकडाउन में रील्स को काफी पुश किया इंस्टाग्राम ने, अभी न्यू फीचर उनके लिए भी बेस्ट है, बट काफी फॉलोअर्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं लोग उससे। कहाँ पे रील से? रील्स, इंस्टाग्राम बिग थिंग भाई, बिग थिंग। नहीं तो रील से यूट्यूब वीडियो पे जाएगा ऐसा बोल रहा? नहीं, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस। हाँ या अवेयरनेस, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी ऑडियंस ज्यादा हो रही है, वहाँ पे ऑडियंस बढ़ रही है आपकी। इंस्टाग्राम पे अगर आपके वीडियो चल रहे हैं तो लोग उस पे उस साउंड पे बना रहे हैं वीडियोस, उसके बाद तो इजीली आपके सॉन्ग भी वायरल होगा। और प्लस सेकंड क्या है, मेन अभी क्या है, लोगों के फॉलोअर्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, समझा? आपके वीडियो एक्सप्लोर में जा रहे हैं, एक्सप्लोर से 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज तक जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट मैं देखता रहता हूँ अकाउंट्स वगैरह, डेली 10 के फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहे हैं यार। इतने नए क्रिएटर्स आ गए हैं इंस्टाग्राम रील्स के बाद, तो एक्सप्लोर में आप जाके देखो भरे पड़े हैं अभी तो काफी। और ये टिकटॉक से तो बहुत अच्छा है कंटेंट। अच्छा, बहुत अच्छा है, मतलब टिकटॉक से तो फार बेटर है। मतलब अब मैं देख सकता हूँ एटलीस्ट रील स्क्रॉल करके, बट टिकटॉक मैंने ना कभी इंस्टॉल किया ना कभी देखा है भाई, ऑनेस्टली बताओ तो। मेरा क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन फिर इससे एडेड कि टिकटॉक से व्यूज बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, राइट? टिकटॉक से लोग यूट्यूब पे जा रहे थे और वीडियोस देख रहे थे। आज अभी टिकटॉक नहीं है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चिंगारी आ गया है, जोश है, जोश आ गया है, मौज का कोई प्लेटफॉर्म है, शेयर चैट का। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आ गए। क्या ये सारे प्लेटफॉर्म वही कर रहे हैं जो टिकटॉक कर रहा था, जो लोगों को व्यूज बढ़ा रहे हैं वो कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या क्या है? आप लोग कितने इसके ऊपर ट्रैक कर रहे हैं? अभी इसमें कैच है। टिकटॉक बेसिकली, टिकटॉक क्या था, जब स्टार्टिंग में टिकटॉक आया था तो वहां पे क्रिएटर्स बहुत बड़े बड़े थे, 20 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन फॉलोअर्स, 5 मिलियन फॉलोअर्स। तो उनकी जो फॉलोअर्स की गेन थी ना, रीच थी। लेट्स टॉक अबाउट फेजू राइट नाउ। लेट्स एग्जांपल, ओके, एग्जांपल। तो फेजू की एक 20 मिलियन की रीच थी उनकी टिकटॉक पर, और उसके 25% उसकी रीच थी इंस्टाग्राम पे। उसके 5 मिलियन फॉलोअर टाइम पे थे जब टिकटॉक बैन हुआ था, ओके। तो एक प्रोड्यूसर को, चलिए मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, एक प्रोड्यूसर को अगर उसको गाने में लेना है, अगर वो 10 लाख रुपए डालता है गाने में, फेजू को लेने के लिए ओनली 10 लाख तो लेता नहीं वो, बट लेट्स एग्जांपल 10 लाख डालता है, तो उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है? तो प्रॉफिट ये था कि फेजू के नाम से बेसिकली एक टिकटॉक नहीं बनता था, उससे बनते थे 10,000 वीडियोस, 20,000 वीडियोस, 2 लाख वीडियोस, 20,000 वीडियोस, नॉन स्टॉप चलते जा रही वीडियोस, वो रुकते ही नहीं थे। तो वहां से क्या होता था, वो एक नेवर एंडिंग, मतलब वो एक बेसिकली इन्फिनिट, मतलब वो एक बेसिकली इन्फिनिटी लूप है, वो नेवर एंडिंग लूप है, वो कहीं पे एंडिंग नहीं होता। तो ऐसे ऐसे उनके हैशटैग्स बने थे फेजू और इन लोगों के, रामजी भाई के गाने के टाइम पे, जो 100 मिलियन पे थे। देयर वाज 100 मिलियन ओनली व्यूज थे, इसके हैशटैग के व्यूज थे वो टाइम पे।
तो बेसिकली इतनी जगह पे आपका अगर आपको गाना सर्कुलेट, तो आपका गाना हिट होना है फॉर श्योर होनी है वो चीज, बिकॉज आप गाना इतना पंप इन करो लोगों के पास. दैट टाइम एवरीबॉडी वाज यूजिंग टिकटॉक, एवरीबॉडी. अक्टूबर के टाइम पे, दैट वाज अक्टूबर नवंबर, यस नवंबर अक्टूबर, सब लोग टिकटॉक यूज कर रहे थे. तो गाने इतने बढ़ गए थे और बहुत सारे सिंगर्स को भी प्रॉफिट हुआ उसका. कुछ ऐसे सिंगर्स थे जो ऐसे बन गए जो 7-7 साल से ट्राई कर रहे, हो नहीं पाए, बट टिकटॉक ने उनको बूम कर दिया. तो वो चीज हो गई. अभी जो नए प्लेटफॉर्म्स निकले, चिंगारी, जोश, अब इनकी सबकी भी अगर आप ऑडियंस जमा करोगे ना, तो वो टिकटॉक के आसपास भी नहीं है. तो इतना मेजर डिफरेंस है, वो इतना मेजर डिफरेंस है. नहीं. हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिव नहीं है. वो एप्स सब है ना, वो एप्स है नाम के लिए. आप लोगों ने हेलो यूज किया था क्या उनका? हेलो मतलब कैंपेन आई तब यूज किया था, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर यूज की नहीं किया. तो वो टिकटॉक रिस्पॉन्सिव नहीं है भाई. जैसे टिकटॉक तो आप ये समझोगे, टिकटॉक तो गांव तक पहुंच चुका था. मैं सोचता हूँ घर तक टिकटॉक था, फेसबुक और इंस्टा नहीं पहुंच सका, वहां पे टिकटॉक पहुंच चुका था. तो एक कितना भी बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में, कितने भी बड़े एप्स को इन्वेस्ट करे, बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया के खुद के एप्स खुल रहे हैं. लाइक हम लोग सब हैप्पी उस चीज के लिए कि टिकटॉक बैन हुआ. चलो ठीक है, वो अच्छी चीज है. बट वो टिकटॉक को कम्पीट नहीं कर पाएंगे. सब ऐप भी एक साथ आके तभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिव नहीं है. वो चीज है जितना टिकटॉक रिस्पॉन्सिव था, हैशटैग कैंपेन क्रिएट करना, वो आपको टिकटॉक वो वाली टीम के कॉल आते थे कि गाइस कम टू आवर ऑफिस, यहाँ पे आके टिकटॉक बनाओ. हनी सिंह को बुला लिया, नया कक्कर को बुला लिया, इन्फ्लुएंसर जमा कर दिए, वहां से हैशटैग बना दिया. तो उनकी खुद की टीम थी बॉम्बे में जो ये पूरा कंट्रोल कर देते हैं. पूरे इंडस्ट्री को लोग कंट्रोल कर देते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री को. टाइम पे नया कक्कर उनके पास थी, हनी सिंह था उनके पास, नया गाना हनी सिंह का, चलो भाई टिकटॉक के ऑफिस. सारे सेलिब्रिटी टिकटॉक पे आ गए थे, सारे सेलिब्रिटी. टिकटॉक क्या करता था, टिकटॉक और 20 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता था बड़े कि आ जाओ ऑफिस, हनी सिंह को मिलवाता है, तो हनी सिंह को मिलवाता है. बच्चे लोग सब आ गए, खुशी चॉकलेट, तो वो आ गए, सबको जमा कर लिया. देन क्या, बूम, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन. तो वो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल था भाई, वो फंडा. बट अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिकॉज अभी राइवल्स बहुत सारे आ गए और सबका अपना अपना ऑडियंस है, सबका अपना अपना एरिया में ऑडियंस बना हुआ है. तो एक चीज नहीं है. और अभी इनके पास पेड ऑप्शन भी नहीं है. मुझे एक पर्सपेक्टिव डालो ना, आप लोग डाल सकते हो. तो क्या कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी ये? फ्यूचर क्या देख रहे हो इस इंडस्ट्री का? पैसा डालो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री देख रहे हो आप? 2025 तक पकड़े तो हम लोग कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, कितना पैसा होगा इसमें? है कोई? आप म्यूजिक की बात कर रहे हो? मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर इन्फ्लुएंसर्स ओनली? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ. अगर करें तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस में? ये कितनी बड़ी? क्या सब लोग इस पे आज क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर ये सब चीजें तो बहुत कम हो रही है, ये सब डिफंक्ट होते जा रहा है. बहुत कम हो रही है. हाँ, जो हमारी ऑडियंस है वो सब, ये सब न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स वगैरह सब डिफंक्ट हो रही है. रेडियो अब डिजिटल की तरफ पूरा जाते हुए. तो ये मतलब ये तो बहुत बड़ी, मेरे को लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री. अभी ब्रांड्स को अगर यूथ टारगेट करना है तो मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी डिजिटल पे ही आना पड़ेगा. भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मेरे हिसाब से ना, सॉरी परुल भाई, मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ना मैक्सिमम 2 इयर्स, फिर ये इंडस्ट्री बन जाएगी बायस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बायस्ड बन जाएगी. बताओ क्यों? कि हर एक छोटा इन्फ्लुएंसर आजकल टी शर्ट पहन के टैग कर रहा है कंपनीज को, कब आ रहे उनके घर पे, छोटे मोटे कुछ ना कुछ आ रहे, तो उनके ना वहां पे रीच कम हो रही है. लोग अनफॉलो करने लगे हुए ऑलरेडी ब्लॉगर्स को. 2017 से जो राइज था ना ब्लॉगर्स का, जो राइज था 17 से, वो ऐसे इंडिया से ऐसे राइज हुए थे. अब वो सडनली ड्रॉप है बिकॉज ब्रांड को उसका आउटकम नहीं आ रहा है जो ब्रांड पे एक्सपेक्ट कर रहा है. आउटकम नहीं आ रहा है उनको, स्वाइप अप ही नहीं आ रहा है, ना कोई उनका टी शर्ट बाय करने जा रहा है. ठीक है, हम लोग ब्रांड्स की तरफ नहीं जाएंगे, ब्रांड्स की तरफ नहीं, जनरल. So Shravan, to end the show, yeah, the 3-4 invaluable tips to an artist who's releasing music video. ऐसे कोई टिप्स बताना? Yes भाई, म्यूजिक वीडियो का सबसे पहले बताओ तो ये चीज, forget business to an artist, to an real artist मैं बात कर रहा हूँ. forget business छोड़ दो भाई, focus on your content. मैं 2-3 टिप नहीं दूंगा, मैं एक ही टिप दूंगा, focus on your content, forget business. वो आने वाला है. ब्रांड छोड़ दो, ब्रांड भी आपके पास चल के आने वाले सामने से. डिवान के पास ब्रांड्स नहीं था, अभी उसके पास 50 ब्रांड्स, उसके पास टाइम नहीं है ब्रांड का काम करने के लिए. सर तो आप तो जानते हो सर, जैसी सर तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत सालों से है. अरे मैं अभी डिवाइन की बात की, मैंने डिवाइन का नया वीडियो देखा. सॉरी मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था. अरे क्या ये क्या बना दिया कंटेंट भाई. हिट है वो कंटेंट, यूनिक है ना, इट इज वेरी यूनिक. पारुल ये तेरी बात को कनेक्ट होता है. याद है तूने क्या बोला था कि लोगों को यही चाहिए,
और डिवाइन ने अब तक ये Exactly. नहीं किया था, अब देखो उसके वीडियोस कैसे। अब उसने वही ऑलगोरिदम ना, पकड़ी वही भाई, तो। उसने नस पकड़ी लोगों हाँ। की। जब कोई आर्टिस्ट किसी की नस पकड़ता है ना, वो हिट ही देगा नॉन स्टॉप। उसने पकड़ लिया। राइट राइट मिर्ची भी ऑडियंस तो गाना समझ ठीक गया है, ना मतलब भाई। मेरे को हाँ। इतना खास नहीं लगा, बट अभी मिर्ची रील्स पे देखो, मिर्ची मैं तो डालो, मिर्ची रील्स पे नॉन स्टॉप रील्स बन रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे रील्स। राइट पीपल आर राइट डूइंग इट, दैट क्रेजी। राइट राइट चल रहा है, राइट इट्स लाइक दैट। सो भाई लास्ट थिंग मतलब लास्ट खत्म कर दिए चीज को। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं, फिर जो देखने वाले फ्यूचर में, प्लीज फोकस ऑन योर कंटेंट। मार्केटिंग नॉट नीडेड, नीड ही नहीं उसकी। वो एक पेड चीज है, वो होने वाली है, नहीं होगी, इट इज नॉट नीडेड। फोकस ऑन योर कंटेंट, बिजनेस भी छोड़ दो। अभी कुछ मेरे क्लाइंट्स भी बताता हूँ, अच्छे नाम, बड़े बड़े नाम के क्लाइंट्स हैं, तो वो लोग क्रिएटिव जोन छोड़ के अभी बिजनेस में घुस गए। तो उनके गाने का ग्राफ ऐसा था, अभी ऐसे होने जा रहा है, बिकॉज वो बिजनेस में घुसे, अभी उनको पैसा चाहिए। एक लेवल पे आके आप पैसा सोच सकते हो, बट आप जब राइस होते हो ना, तो फॉरगेट मनी वो आने वाला है, आपको पीछे पीछे आने वाला है, आप उसके पीछे मत भागो, कंटेंट पे फोकस करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जितना ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे उतना ज्यादा बेटर है। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। सो इसी ऑर्गेनिक के लिए हमने ये शो किया था, और खत्म भी हम जी। लोग ऑर्गेनिक पे कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। you so श्रवण ने much. बोला था कि ये पहला Thank शो you, है, बट जैसे भाई। श्रवण ने हम लोग दोनों को पीछे छोड़ दिया। ये शो में श्रवण सबसे नंबर अव्वल दर्जे पे आए हैं। और Okay, वही है। okay. और I'm getting used to it, I'm getting used to it. अभी मैं Yes, करूंगा, मैं बीच में आया था, बट मैंने किए नहीं थे, मतलब लाइक मैं थोड़ा सा कैमरा शाय हूँ, मैं करता नहीं हूँ। मेरे को बीच में भी आया था लॉकडाउन में, मैंने नहीं किया किसी के साथ, बट आपका फर्स्ट टाइम था, बिकॉज आप साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था करने के लिए, बट yes, अब मैं करूंगा। yes, yes. So भाई this सबसे बेस्ट है, थैंक यू जेसी भाई, आपने इतने थैंक बढ़िया यू सो मच जैसी अपॉर्चुनिटी दी भाई फॉर आपने, दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट भाई। था मेरा भी ये। मजा आ गया। थैंक यू सो मच मजा आ गया भाई। बोथ ऑफ यू। और मैं यही आप लोग दोनों के लिए दुआ करूंगा कि और 2021 में आपके कम से कम दोनों के 100 सुपरहिट गाने बाहर आए, ब्रांड्स के साथ, 100 अच्छा, ब्रांड्स के वन साथ। मोर, yes, one more thing, we have started a new record label, it's called Ruri Cola Records, Ruri Cola Records। तो यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट स्मॉल आर्टिस्ट हैं, हम सबको प्लेटफॉर्म देने वाले हैं, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ की छोटे शूट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, बट एक पूरी डेडिकेटेड टीम होगी उनके लिए। तो बेसिकली एक रिकॉर्ड लेवल बनने वाला है अभी। सो भाई सबको पूजा में आना है, आपको इनवाइट भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, प्लीज। See, this is what our industry needs। और मैंने जब बोला था कि 2025 की मैंने बात की थी, वो यही बात की थी कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बढ़ रहा है, क्रिएटर्स अच्छे आ रहे हैं, ये जो और पूरा जो ट्रांसपेरेंसी जो जिस लेवल की हो रही है, यही मैं चाहता हूँ। और आप लोग दोनों जिन लोगों से जुड़ रहे हैं, और आप लोगों से जो लोग ये वीडियो देख के जुड़ेंगे, आई एम श्योर there will be a lot of learnings। Thank you so much again, Parul and Shravan। To the people who are watching this is my 14th episode। I haven't yet decided about my next episode, but it's going to be soon. Till then, you could follow me on This Is Jesse J on Instagram, YouTube, Facebook, wherever possible. Try and spread my videos as much as possible. This gives me motivation to get more industry experts like Parul and Shravan, and we will meet you next time. Till then, ciao. Yeah guys, bye Buru, Bye bye guys, Jesse, bye, see you, bye bye Sean, bye Jesse भाई, thank you so much। Bye.